Okay, so we are today going to cover aromatic hydrocarbons. Again, what we are going to cover today is mainly the part in which we are going to have aromatic hydrocarbon, particularly benzene and some of the derivatives, not all, because we'll be having some chapters like haloalkanes and haloarenes, alcohol, phenol, ether, aniline, and in the chapter of amine, है ना? तो वो सब मैंने क्या किया है आफ्टर कवरिंग एवरीथिंग ना, हेलो अल्केन्स, अल्कोहल, इथर, aldehyde, ketone. After covering everything, now I'll be taking one common chapter which I'll call aromatic compounds. There you will see that we are going to cover the specific reaction of a particular functional group if it is attached to the benzene ring. So that will be a separate chapter which I'm going to take. But right now I'll be focusing on main the characteristic reaction of the aromatic hydrocarbon or the benzene ring itself. एंड दैट विल बी मेनली, देखो प्रिपरेशन तो करेंगे हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन तो पढ़ेंगे, बट उसके बाद व्हेन विल बी गोइंग इन द रिएक्शन ना, यू विल फाइंड दैट कि मेनली वी आर गोइंग टू डील विद इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. व्हेन द क्वेश्चन ऑफ particular functional group attached with the benzene ring will be coming ना, then we'll talk about कि वो हम लोग aromatic compounds करके चैप्टर करेंगे, where there we are going to cover that section also, है ना. I'll just be showing you the syllabus of JEE Advanced. प्रत्युष, बाकी सबके कैमरा क्यों ऑफ हो गए फिर तुरंत से? वाई शुड अगेन एंड क्या यार, मतलब अजीब ही हरकत करते हो यार तुम लोग. वाई यू ऑल आर बिहेविंग सो चाइल्डिश? सर ने देखना बंद कर दिया तो बंद कर दिया हमने भी कैमरा. वाई यू आर डूइंग दैट? मतलब पढ़ने हैं तो जस्ट बी इंटरेक्टिव ना. ओके, सो बेसिकली आई वांटेड टू शो यू द सिलेबस फर्स्ट कि जेई एडवांस ने क्या लिख के दिया है अभी तक. तो इफ यू सी दैट दे आर टॉकिंग अबाउट बेंजीन का स्ट्रक्चर, electrophilic substitution reaction which covers halogenation, nitration, sulfonation, Friedel-Crafts alkylation and acylation, and then effect of the directing groups, mono substituted benzene they have written it clearly, but we'll be seeing that कि अगर di substitute भी हो गया तो क्या करेंगे, we'll talk about that also, but we need to know कि what is written in the syllabus, है ना. तो this much is the written syllabus of JEE Advanced. Okay, तो first we'll start with the benzene का पार्ट इटसेल्फ. बट उससे पहले एक पार्ट जो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, दैट यू विल रिवाइज फ्रॉम जीओसी वाला चैप्टर, व्हिच वाज बेसिकली द कांसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी इटसेल्फ. तो कुछ कुछ चीजें जो है वो रिवाइज कर लोगे पुराने वाले से, विच वाज कवर्ड इन द जीओसी में. हम लोगों ने एरोमेटिक कौन है, नॉन एरोमेटिक कौन है, एंटी एरोमेटिक कौन है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कर दी थी. हाइब्रिडाइजेशन वगैरह की बात की थी, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की बात की थी, आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने ऑर्थो मेटा पैरा ये सब की बात की हुई है ना. So those things we have already covered, and that's why I've mentioned these things ki we have already covered, and then you have to revise it from GOC wala chapter and isomerism, है ना. We'll be going in more detail about the benzene. थोड़ा सा historical point या फिर थोड़ी सी चीजें मैं बता देता हूँ यहाँ पे, then we'll be going for the reaction obviously. तो first thing is some important points. Who discovered benzene? That was Michael Faraday. ज्योमेट्री वगैरह ये अब केमिस्ट्री पे आ चुके हैं हम लोग. सो वी नो दैट कि कुछ स्ट्रक्चर्स, अच्छा थोड़ी सी हिस्ट्री में दिखा देता हूँ कि डिफरेंट साइंटिस्ट, ये क्या है ना बेंजीन के साथ, इट वाज हैविंग सम अनयूजुअल टाइप ऑफ फॉर्मूला. जनरली इफ यू सी एनी हाइड्रोकार्बन, एंड नॉर्मली कार्बन से हाइड्रोजन का नंबर विल बी हाईली ग्रेटर इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम. हाइड्रोजन विल बी हैविंग ग्रेटर नंबर, है ना. जैसे कोई अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तक भी लेते हैं तो विल बी गेटिंग दैट कि मोस्ट ऑफ द टाइम you'll be having more number of hydrogen atom than the carbon. But benzene was one compound which was having a specific thing, that it was having a formula C6H6, and that's why it was unusual. So scientists were trying to get the structure of the benzene itself. बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन आया था, सबने अलग अलग तरीके से सोचा. ऑब्वियसली इनिशियल वेयर द इनिशियल साइंटिस्ट का जो भी वर्जन आया वो सब रॉन्ग थे. जैसे देखो यहाँ पर क्लॉस का एक वर्जन आया, डेवार का एक वर्जन आया, लेडेनबर्ग का है, आर्मस्ट्रॉन्ग का है, थील का है, केकुले का है. ये जो केकुले का था दैट वाज कंसिडर्ड टू बी मेजर सक्सेस, नॉट कंप्लीटली राइट, क्योंकि उन्होंने भी जो दिया था ना, उन्होंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम का, रिवर्सिबिलिटी का साइन दिया था. दैट मींस दे टॉक्ड अबाउट कि दीज टू आर रियल स्ट्रक्चर विच आर इन रैपिड इक्विलिब्रियम. ओके, बट दैट वाज आल्सो रॉन्ग. जो एक्चुअल आया वो स्ट्रक्चर जो आया वो हकेल से ने दिया, एंड दैट रूल वाज कि ये दोनों एक्चुअली रियल स्ट्रक्चर नहीं है. दीज आर टू कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. One is like this and another will be like this, and these two are canonical, which means hypothetical structure, they are not real. And the point was genuine because उन्होंने बोला था कि अगर ये दोनों रियल स्ट्रक्चर फॉर इवन फॉर अ स्मॉलर स्पैन ऑफ टाइम रहेंगे ना,
So you'll be having two types of bond length, two type of bond angle. ये सब मिलने लगेंगे because you have got double bond and single bond. But he talked about कि इसका structure कभी भी देखो तो कार्बन कार्बन bond length is coming in between single bond and double bond. It is neither single bond nor double bond, and that's why he talked about कि these two are canonical structures which are not real, canonical or resonating structures, or resonating structures, and the actual structure was the resonance hybrid. So the actual structure was resonance hybrid, and that has got carbon carbon ka bond order is 1.5. So he talked about ऐसे हम लोग गोल गोल कर देते हैं, but to be more specific we need to show it like this कि every bond is having 1.5 bond order, and that's why we are getting this kind of structure. और इसी को फिर ऐसा बता दिया गया. ठीक है, तो दैट वाज द रियल एक्सप्लेनेशन, वी हैव डिस्कस अबाउट दैट अ लॉट, है ना. तो ये पूरी कहानी हम लोगों ने देख ली है. तो दिस साइन वाज एक्चुअली रॉन्ग, दिस वाज नॉट राइट. उसी की जगह वहां इसको चेंज किया गया एंड बोला गया कि दीज टू आर नॉट रियल स्ट्रक्चर्स, दीज आर हाइपोथेटिकल, एंड द रियल स्ट्रक्चर इज दिस वन, है ना. इज इट ओके ना. तो हकेल ने जो प्रपोज किया था वो कहानी स्ट्रक्चर से हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये सब तो किया हुआ है ऑलरेडी. तो आई एम जस्ट शोइंग यू उन्होंने क्या कहानियां बताई थी रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, एंड दैट वाज दिस थिंग. Already we talked about that कि alternate conjugation is possible and that's why it is undergoing the phenomenon called resonance. ये सब किया हुआ है हम लोगों ने GOC में. I'll be asking you some just some very simple questions. Uh, Tell me the answer of these questions in benzene. How many 120-degree angles we are going to get in benzene? Benzene में we'll be getting how many 120-degree angles? So when we say this is the structure, okay, Pratyush is saying 18, yes, because we have got hydrogen atom also, जो कि दिखता नहीं इधर है ना, ये सब है. And that's why at every carbon we are getting 3 120 bond angles, है ना. ये देखो, ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये और एक एंगल, ये, और ऐसे ही इंटू 6 कर दो, है ना. एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू गेट 18 180-degree bond angles. What about the number of valence shell electrons which are delocalized? Can you tell me? Answer. How many electrons, valence shell electrons, are delocalized? ये तो आंसर करना चाहिए, एरोमेटिसिटी में इतना देखा हुआ है. वी हैव गॉट 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना. 3 पेयर आर देयर. देखो ये जो दिखाया था मैंने, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम लोग बात करते हैं, दीज आर द 3 पेयर्स which are in resonance delocalized, है ना. And that's why we'll be saying that there are 6 pi electrons. They are simply asking you valence electrons. So those are the pi electrons which are delocalized. Now, if I am asking you valence electrons which are localized, and it is talking about not all the electrons, only valence electrons, है ना. तो carbon was having each carbon is having valence shell में 4 electrons होते हैं ना. So total electrons we have got, if I am having C6H6, तो valence shell electrons will be 6 into 4 plus 6 into 1, है ना. तो 30 है. उसमें से only 6 are in delocalization, 6 are delocalized. So that's why the remaining 24 will be localized. Is it okay? Any doubt? चलो, पेयर पूछेगा तो 12 पेयर्स आर लोकलाइज्ड एंड 3 पेयर्स आर delocalized. Any doubt up to this point? Now I'll be giving you some important compounds from the point of view of nomenclature, because
some compounds we are supposed to know their name, because sometimes they'll not give you the structure, they'll just be mentioning the name, and that's why वहां गड़बड़ हो जाएगा अगर तुमको नाम नहीं पता है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो पर्टिकुलरली बेंजीन, टॉल्विन, जाइलिन हम लोगों ने यूज किया हुआ, ऑर्थोमेटा पैरा, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू आ जाता है तो वी कॉल इट स्टायरिन। उसके बाद क्यूमिन है, क्यूमिन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एक जगह हम लोग इस रिएक्शन की बात भी करेंगे फिनॉल वाले में, विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। नेफ्थलीन हम लोगों ने देखा, एंथ्रासिन, फेनेंथ्रीन देखा हुआ है, मेसिटिलीन इज इंपॉर्टेंट आगे आएगा। तो समटाइम्स व्हाट दे विल डू ना, दे विल जस्ट बी राइटिंग द नेम इन इंग्लिश, है ना, और उसके बाद फिर वो रिएक्शंस की बात करेंगे, या तो उसके फॉर्मेशन की या फिर उसके रिएक्शंस की बात करेंगे, एंड देन वी आर सपोज टू नो द कंपाउंड एटलीस्ट, तभी तो उसके बाद हम लोग उसके आगे का रिएक्शन की बात कर सकते हैं ना। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू नो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। राइट नाउ आई हैव जस्ट गिवन यू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ओनली, बट बाद में तो फेनॉल, ये सब एनिलीन, ये सब तो आता ही है, जो हम लोगों ने नोमेनक्लेचर में ऑलरेडी देखा था, है ना। एंड देन विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट कि अगर ये अल्काइल या अराइल ग्रुप बन के आता है तो फिर कैसे बन के आ सकता है। तो वी कैन हैव 3-4 वेरिएशंस। जैसे अगर ये बेंजाइल ग्रुप, मतलब यहां से अगर ये ग्रुप बना तो एज अ होल दिस थिंग विल बी कॉल्ड बेंजाइल। यहां से अगर ये डाइवेलेंट ग्रुप बन जाता है, मतलब यहां भी कुछ कनेक्ट हो सकता है, यहां भी कुछ कनेक्ट हो सकता है, देन वी आर गोइंग टू कॉल इट बेंजल। एंड अगर ये ट्राइवेलेंट हो जाता है तो दिस इज मोनोवेलेंट, दिस इज डाइवेलेंट और बाइवेलेंट, दिस इज ट्राइवेलेंट। ओके, वैसे ही अगर बेंजीन खुद ही यहां से कनेक्ट हो तो दिस एज अ ग्रुप इज कॉल्ड फिनाइल, एंड अगर बेंजीन पे सीओ आ गया तो दिस इज कॉल्ड बेंजोइल। इज इट ओके? तो अगर बेंजोइल क्लोराइड बोल रहा है तो PHCOCl विल बिकम बेंजोइल क्लोराइड, है ना। वैसे मैं 3 एग्जांपल बेंजाइल, बेंजल और बेंजो के दे देता हूं, सो दैट यू शुड हैव बेटर आइडिया। जैसे देखो, बेंजाइल, जब बेंजाइल क्लोराइड बोला तो वी हैव गॉट 1 क्लोरीन, बेंजल क्लोराइड बोला तो वी हैव गॉट 2 क्लोरीन, बेंजो ट्राई क्लोराइड बोला तो वी हैव गॉट 3 क्लोरीन, है ना। So that's why obviously IUPAC nomenclatures will be there, but if they are talking about these type of names, तो we need to know कि benzyl का मतलब we have got the monovalent group जिसमें PHCH2 आ रहा है, उसके बाद बेंजल में PHCH, and then there are 2 valencies for it available to get attached with the other groups, and then benzo में we have got 3 valencies available to get attached with the other groups. Okay, तो ये बेसिक पार्ट्स थे। अब आ जाते हैं, जैसा हम लोगों का पैटर्न रहा है हमेशा ही, बेंजीन का हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे। मोस्टली देखोगे कि हम लोगों ने सारे रिएक्शंस कवर करके रखे हैं, एक्स्ट्रा कुछ आएगा तो मैं बता दूंगा। एंड देन विल बी गोइंग फॉर द प्रॉपर्टीज, एंड प्रॉपर्टीज में मोस्ट ऑफ द पार्ट विल बी फ्रॉम द सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ओनली, जिसकी बात हम लोग इस चैप्टर में पर्टिकुलरली करने वाले हैं। तो ये ज्यादा कहानी भरी नहीं है। पहला जो केस है वो है डीकार्बोक्सिलेशन का, हम लोगों ने सोडा लाइम वाला रिएक्शन देखा, तो वैसा ही है। इफ आई गॉट PHCONA and NaOH along with CO, this combination was called soda lime, है ना, तो they may mention soda lime also, तो देन वी गेट बेंजीन एंड प्लस Na2CO3 निकल आता था। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है ना, डीकार्बोक्सिलेशन वाला रिएक्शन। इसके बाद जो दूसरा आता है दैट इज अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। ये भी हम लोगों ने किया हुआ है, क्योंकि जब मैंने NBS पढ़ाया था तो वहां पर ये कहानी बताई थी तुमको कि इफ आई एम गेटिंग NBS और Br2H न्यू, वो भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, इफ दे आर गिविंग यू Br2H न्यू, तो दैट इज ऑल्सो हैविंग द टेंडेंसी टू do the allylic or benzylic substitution. Right now I have started it with cyclohexene। देखो कैसे कर रहे हैं ये रिएक्शन हम लोग। I have got cyclohexene and then इस पे मैंने NbS-CCl4 डाल दिया, NbS in CCl4, and like I told you Br2H न्यू दिया तो भी वही काम करते हैं। Then we have got these two positions which are allylic positions, है ना, these two are allylic positions। वैसे ये भी अलाइलिक है, तो उसमें से किसी एक पे Br विल बी कमिंग, है ना। एंड दैट्स व्हाई नेक्स्ट स्टेप में वी आर गेटिंग कोई एक, जैसे ऊपर में दिख रहा है कि ये नीचे वाला जो पोजीशन है उस पे Br आ चुका है ना, तो वी हैव गॉट Br। एंड आफ्टर दैट इफ आई एम डूइंग अल्कोहलिक KOH तो दैट विल बी परफॉर्मिंग एलिमिनेशन, है ना। तो एलिमिनेशन किया तो यहाँ पे व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर,
विल बी गेटिंग एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन के थ्रू इट विल बी फॉर्मिंग अल्कीन अगेन। सो वो जो अल्कीन बनेगा इट विल बी कंजुगेटेड अल्कीन, तो डबल बॉन्ड जो बना हुआ है उसी के कंजुगेशन में दूसरा आ जाएगा, एंड देन विल बी फॉलोइंग द सेम प्रोसेस अगेन। तो नाउ व्हेन आई एम डूइंग दैट, फिर से जब NBS CCl4 में लिया, तो अगेन विल बी गेटिंग, नाउ वी हैव गॉट टू काइंड्स ऑफ पोजीशंस अवेलेबल, दोनों में से किसी एक पे लेके आ जाओ। तो जैसे मान लो मैंने किसी में भी, यहाँ तो कुछ दिखाया नहीं तो कहीं एक पे ले आओ, मान लो यहीं पे लगा दिया मैंने Br, and then when again I am applying alcoholic KOH, it will have the elimination, and that's how we can have benzene formed, and so that's how we are going to get the benzene. Any doubt up to this point? This is another way of for preparing the alkene starting from cyclohexene. Okay, तो this was the second method. कहीं भी डाउट रहेगा पूछ लोगे। तीसरा जो मेथड है दैट इज द रिडक्शन रिएक्शन ऑफ द फेनॉल और इट्स डेरिवेटिव। तो जैसे सिंपली फेनॉल के लिए मैंने अगर उसको Zn हीट के प्रेजेंस में अगर हीट देकर, इफ आई एम डूइंग द रिडक्शन बाय Zn ना, एंड पर्टिकुलरली वी हैव टू टेक Zn डस्ट टू इंक्रीज इट्स रिड्यूसिंग पावर, है ना। तो डस्ट क्यों लिया है? टू इंक्रीज रिड्यूसिंग पावर। इसलिए डस्ट फॉर्म में लेते हैं, या फिर कभी कभी एसिड ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने CH3COH लिया, तो ये दोनों चीजें जो है ना रिड्यूसिंग पावर को इंक्रीज करने वाली हैं। तो वहां सिर्फ यही होता है कि ऑक्सीजन चला जाएगा, ZnO बन जाएगा इसके साथ। तो ZnO प्लस बेंजीन विल बी गेटिंग। मान लो कोई डेरिवेटिव बनाना है, तो जैसे यहाँ पर ऑर्थो पे मिथाइल ग्रुप है फिनॉल के, देन इफ आई एम हीटिंग इट विद Zn हीट, देन इट विल बी गिविंग यू CH3 रह जाएगा प्लस ZnO बन जाएगा ना। तो दैट विल बी अनदर रिएक्शन। तो दिस इज ऑक्सीजनेशन ऑफ द फिनॉल। अब लेकिन इस प्रॉब्लम क्या है इस मेथड के साथ कि इसका यील्ड बहुत ही पुअर है, इसलिए इसको हम लोग इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। I'll give you that note also, that this yield, the yield for this reaction is not very high, hence it is not used for industrial preparation. But this reaction can be used to detect the phenol. मतलब देखो phenol से हम लोगों ने benzene मिल चुका है, तो phenol is getting converted into benzene, and Zn was able to reduce it. That is a fact which can be utilized to identify the phenol का presence, है ना। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जस्ट ट्राई करो, ट्राई करो जरा ये। If we are getting phenol or its derivative, Zn will be able to reduce that. If it is not phenol or derivative, then Zn will not be able to reduce that, and that's the fact we are talking about. तो उसी में है, we have got benzene derivatives only. The formula is C7H8O. सबसे पहले हम कभी भी they'll be giving you any compound ना, तो पहले degree of unsaturation चेक कर लेना, सो दैट यू गेट आइडिया कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो DOU अगर मैं निकालूंगा ना, तो दैट विल बी कमिंग, 7 का डबल से 2 ज्यादा इज 16, 8 का डिफरेंस है, ऑक्सीजन को भी इग्नोर, दैट्स व्हाई DOU इज कमिंग 4। एंड वी नो दैट कि बेंजीन रिंग में ऑलरेडी DOU4 कंज्यूम हो जाता है ना। तो वी हैव गॉट दिस, एंड नाउ दिस इज अ ग्रुप, एंड देन इसके साथ अभी एक्स्ट्रा क्या है, तो 1 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन तो एडजस्ट कर लेगा। तो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू यूटिलाइज हियर, है ना। इज इट ओके? तो अब ये तीनों को मिला के कुछ तो बनाना है। तो पहला क्लेम क्या है कि दैट when A is being treated with Zn dust in CH3COH on heating gives C7H8, that means O is going out, है ना। तो that was that I was talking about, that oxygen is going away from the compound, इसका मतलब है कि उसमें phenolic oxygen was there, है ना। That's why what we will be saying कि if I'm talking about A particularly ना, तो it must have this
along with OH. अब यहाँ कहानी ये आ गई कि OH तो ले लिया, तो O तो कवर कर लिया, तो वी हैव कवर्ड दिस एंड दिस, बच गया एक कार्बन, है ना। तो देन दैट कार्बन कैन बी प्रेजेंट ओनली इन द फॉर्म ऑफ CH3 ग्रुप, बिकॉज अभी अपने पास कोई एक्स्ट्रा कार्बन एक से ज्यादा बचा नहीं है और कोई अनसैचुरेशन भी नहीं बचा है। तो देन इट कैन बी ऐसा, और ऐसा, थ्री पॉसिबिलिटीज आर देयर। इट कैन बी दिस ऑल्सो, और इट कैन बी पैरा पे हो सकता है ना। ऑल दीज पॉसिबिलिटीज आर देयर। Okay, so all these three options are possible for A. Is it okay? But it is saying that A dash and A double dash are the two compounds which are not giving you. तो यहां पर अगर B पूछेगा, तो अगर यहां से पूछा B क्या होगा, तो B will always be CH3 है। Is it okay? That is Tolville. Now, अब यहाँ पूछा A dash and A double dash क्या होगा, which is not going to give you this reaction. That means we don't have the phenolic group, है ना। फेनोलिक ग्रुप का मतलब है बेंजीन रिंग से O अटैच्ड हुआ है और उसके बाद H आया है ना। इसी को हटा देना है कहीं से। तो अब दो कहानी है, या तो आई हैव गॉट फिनॉल को बर्बाद करने का तरीका क्या होगा, इफ आई हैव टू रिमूव इट, कि ये फिनोलिक ना रहे, आई कैन इंसर्ट समथिंग इन बिटवीन हेयर और इन बिटवीन हेयर, है ना। ये तो दो पॉसिबिलिटीज है, एंड दैट्स व्हाई ए डैश एंड ए डबल डैश, जो दो पॉसिबिलिटी है ना, वो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। तो आई कैन पुट इट लाइक, या तो मैंने O के पहले ही एक कार्बन डाल दिया, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट CH2OH, एंड दूसरी पॉसिबिलिटी जो है, मैंने O और H के बीच में एक कार्बन डाल दिया, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट O एंड देन CH3, है ना। एंड दीज टू आर नॉट हैविंग फेनोलिक ग्रुप प्रेजेंट, है ना। एक तो नॉर्मल एलिफेटिक अल्कोहल हो गया, दूसरा तुम्हारा ईथर हो गया। दिस इज एलिफेटिक अल्कोहल, and the second one is ether. That's why they are not going to give you this reaction. Any doubt? Any doubt? चलो, तो ये दिस वाज वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस जिंक डस्ट along with एसिटिक एसिड का रिएक्शन। एक नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट कॉल्ड बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन जो है ना, वो देखेंगे, एंड देन वहां से बात करेंगे हम लोग। एक्चुअली इसकी बात वापस से मैं करूंगा एनिलीन के टाइम पे, क्योंकि ये कहानी स्टार्ट ही होती है एनिलीन से, और वहां पे विल बी हैविंग अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट समथिंग कॉल्ड डायजोटाइजेशन एंड देन कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे जब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। अभी राइट नाउ वी आर जस्ट स्टडिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो जब एरोमेटिक कंपाउंड में जाएंगे तो विल बी अगेन बी डिस्कसिंग दिस रिएक्शन। बट ये रिएक्शन इतनी बार काम आने वाला है ना अभी से ही, कि हम लोगों को ये पढ़ लेना चाहिए यहाँ पे, अ पार्ट ऑफ इट, बट नॉट द कंप्लीट थिंग। जो मैंने बोला कपलिंग रिएक्शन, उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। बट ये वाली कहानी क्या है ना, ये कहानी में अब ये भी दे सकता है, या फिर दे कैन ऑल्सो गिव यू NaNO2HCl। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन चलता कैसे है, देखो ध्यान से। क्या मैंने डिस्कस किया है क्या बेंजीन डायजोनियम वाला कभी इससे पहले? हैव आई डिस्कस दैट? ओके, ठीक है, चलो कर लेते हैं। किसी और बैच में कर दिया हुआ, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, वी हैव गॉट HNO2, या फिर इवन इफ आई एम हैविंग NaNO2 ना, तो वी नो दैट कि NaNO2 along with HCl will give you a HNO2, है ना। दैट कैन गिव यू HNO2, दैट्स वन पार्ट। मतलब NO2 माइनस विल कैप्चर H प्लस फ्रॉम ये, क्योंकि HNO2 इज अ वीक एसिड, तो अ पार्ट ऑफ इट विल गेट कन्वर्टेड टू HNO2। तो फाइनली विल बी गेटिंग HNO2, पहले से दिया रहा है, या NaNO2 के साथ HCl दे दिया जाए। एंड HNO2 का स्ट्रक्चर इफ यू सी ना, तो वी हैव गॉट NO3 का, HNO3 का स्ट्रक्चर तुमको पता होगा, तो HNO2 का स्ट्रक्चर इज लाइक दिस along with a lone pair। ठीक है, नाउ अभी क्या होता है इसमें, HCl we already have, and that's why we'll be getting H plus का presence that will protonate this HNO2। it is like it will make it like this, and then यहां से we get that कि ये water leave कर देगा, and then we'll be getting NO plus। is it okay? Any doubt in this part? अब यही जो है ना, ये पार्ट जो है ना, यहां से अटैच होने वाला है। दैट मीन्स व्हेन इट कम्स टू एनिलीन ना, तो इट इज लाइक यहाँ पे
वी हैव गॉट NH2 एंड देन NO प्लस को मैं ऐसा लिख रहा हूं, जानबूझ के ऐसा कर रहा हूं मैं, आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, एंड देन यहां से वाटर निकल आता है इसके प्रेजेंस में। ये नॉर्मल अल्कोहल्स के साथ भी होता है, बट वहां पर कहानी कहाँ चेंज हो जाएगी, आई टेल यू दैट ऑल्सो। ये निकल आता है, दिस विल बी हैविंग -H2O, एंड देन यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस प्लस, बट इसके पास लोन पेयर है अभी, एंड दैट्स व्हाई इट विल हैव अनदर कैनोनिकल स्ट्रक्चर विच इज हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, एंड दैट विल बी N। अभी यहां प्लस आ गया, ट्रिपल बॉन्ड यहां आ गया ना, तो दिस इज कॉल्ड बेंजीन डायोजोनियम आयन, बिकॉज इसके साथ क्लोराइड प्रेजेंट है, तो फिर बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड बोल देते हैं। तो राइट नो, जो आयन मैंने दिखा है, दिस इज कॉल्ड बेंजीन डायोजोनियम आयन, ठीक है। अब इसी में अगर Cl माइनस आ गया तो उसी को क्लोराइड बोल देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड बेंजीन डायोजोनियम आयन, और उसके साथ क्लोराइड आ गया, देन वी आर कॉलिंग इट, इट इज अ सॉल्ट, है ना। अब होता क्या है, नॉर्मल अल्कोहल विल ऑल्सो गिव यू दिस रिएक्शन, ओके। जो नॉर्मल अल्कोहल है दैट विल ऑल्सो गिव यू, इवन इफ आई एम हैविंग कोई ROH जैसा है, सॉरी RNH2, नॉट अल्कोहल, इवन इफ आई एम हैविंग RNH2 जैसा कुछ हो गया ना, और उस पे भी मैं दे दूंगा, इवन इफ आई एम ट्रीटिंग इट NaNO2HCl और HNO2HCl ना, दैट विल ऑल्सो गिव यू RN2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो ये अल्काइल डायजोनियम क्लोराइड हो गया, बट द प्रॉब्लम विद दिस इज ना, दिस इज नॉट स्टेबल, एंड दैट्स व्हाई in presence of water it will simply be forming alcohol and N2 निकल जाता है, ओके। ये जो है ना, ये स्टेबल नहीं है। अच्छा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के बारे में क्या है कि दैट इज ऑल्सो नॉट स्टेबल, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रूम टेम्परेचर, यहां देखो बहुत ही केयरफुली ध्यान से देखना, यहां मैंने इसको 0 to 5 डिग्री C का टेम्परेचर दिया ना, दिस इज नथिंग बट 0 डिग्री C to 5 डिग्री C, and at that temperature it is stable enough, okay। So that's why we are saying that कि when I am having benzene diazonium chloride ना, इसी को N2 प्लस लिख देते हैं फिर हम लोग शॉर्ट में, जो N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस आया उसी को N2 प्लस बोल देते हैं। तो व्हाट वी आर सेइंग दैट कि दिस इज नॉट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, बट द पॉइंट इज, एंड दैट्स व्हाई एट रूम टेम्परेचर अगर कोई पूछे ना, तो वहां हम लोग इसको भी बोलेंगे कि दिस विल बी converted into, agar water will always be there, so at room temperature this will also be giving you phenol directly, this will be giving you phenol। तो we need to be very careful about the temperature they are mentioning in the question। कुछ नहीं लिखा है तो रूम टेम्परेचर ले लेते हैं, दैट्स व्हाई विल बी सेइंग दैट कि यहाँ पे OH आ जाएगा और फिर N2 निकल आएगा ना, तो दैट्स one reaction। But if I am maintaining that 0 to 5 degree C temperature which is also called ice cold condition, अगर ऐसा कुछ हो गया तो वहां पर we can say that कि it is going to give you the we can isolate this benzene diazonium chloride, but so that's why we'll write, but at 0 degree C to 5 degree C benzene diazonium chloride is stable enough to get isolated, or so that it can be isolated and it is utilized in preparation of, and that's why it is very important, in preparation of or during the synthesis of, कैसे भी लिख दो, preparation of many
बेंजीन डेरिवेटिव्स और बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड्स। ओके, एंड दैट्स व्हाई ये जो मैंने ऊपर जहां से स्टार्ट किया वहीं पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये ध्यान में रखना, अभी हम लोग बेंजीन बनाना चाह रहे थे बट यहाँ पे बना अभी तक तो फिनॉल है। बट इफ आई एम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पहले बना और उसके बाद फिर वहां से फिनॉल बना। बट यहाँ पर लाइक आई टोल्ड यू, इफ आई एम मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री C, then we are saying that we are able to isolate it, and then that isolated benzene diazonium chloride can be utilized to synthesize many of the benzene derivatives including the benzene itself, है ना। तो यहाँ पे आई राइट दैट नोट। अभी देखो यहाँ से, वंस द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हैज बीन आइसोलेटेड ना, तो फिर वहां से देखो बहुत सारे रिएक्शंस तुमको मिलने वाले हैं। तो वो रिएक्शंस में एक पूरी लिस्ट में दे रहा हूँ, इनफैक्ट इट विल बी लाइक 1 पेज जैसा रिएक्शन होगा पूरा। बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से कुछ भी रिएक्शन हर साल कुछ ना कुछ आता है। एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच यू आर गोइंग टू डील विद। तो सबसे पहला तो मैंने देखो फिनॉल जो बताया कि इफ आई एम हैविंग नॉट दिस कंपाउंड आइसोलेटेड, अब इस पे अगर मैं वापस से फिनॉल बनाना होगा तो आई कैन ब्रिंग द टेम्परेचर टू द रूम टेम्परेचर एंड देन वाटर के प्रेजेंस में इट विल बी फॉर्मिंग द फिनॉल, है ना। तो यहाँ पर देखो ये फिनॉल बना चुका है, तो दैट्स वन पार्ट। नेचुरली अगर मैंने 0 डिग्री C पे ऊपर वाला रिएक्शन करवाया था तो अल्टीमेटली इट विल बी फॉर्मिंग द फिनॉल। बट नाउ आई कैन आइसोलेट इट एंड आई कैन यूटिलाइज डिफरेंट काइंड ऑफ रिएजेंट्स टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। तो यहां जैसे देखो वी हैव गॉट बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ H3PO2। तो ना इसके आगे की कहानी जो पूरी चल रही है ना, why it is important, because it can be utilized to prepare so many of the compounds and those are having some names also। जैसे देखो यहाँ सैंडवेयर रिएक्शन दो है, CuCl या CuBr लेकर HCl के प्रेजेंस में हीट किया। इफ आई एम टेकिंग सिंपली Cu and get heat, then chloride is already there, then it can also form chlorobenzene again, है ना। तो ये देखो हेलोजन डेरिवेटिव्स वाला केस आ गया ये, दीज आर हेलोजन डेरिवेटिव्स, हेलोअरीन्स जिसको बोलते हैं, है ना। ओके, दैट इज अनदर पार्ट। वैसे ही आइसो साइनाइड ले लिया है तो CaCN+HCN ले लिया तो फिर साइनोबेंजीन बोल दो, है ना, या बेंजीन नाइट्राइल बोल दो, दैट्स अनदर पार्ट। KI ले लिया तो फिर आयोडोबेंजीन बन गया, यहाँ पर भी हेलोजन, यहाँ पे भी विल से दैट की हेलोअरीन सी बन रहा है, ठीक है। फिर देखो फ्लोरोबेंजीन बनाना डिफिकल्ट होता है, दैट्स व्हाई वी टेक द इनडायरेक्ट मेथड। HbF4 लिया, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, बट HbF4 से वी आर गोइंग टू गेट फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो हेलोअरीन्स में देखोगे कि दिस विल बी यूटिलाइज, एंड लाइक आई टोल्ड यू एवरी ऑर्गेनिक का फ्यूचर चैप्टर विल बी हैविंग द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस कंपाउंड। इनफैक्ट आई हैव गिवन यू दिस कंप्लीट लिस्ट ऑलरेडी, एक जगह ही मैंने तुमको दे दिया है। NaNO2+U लिया तो नाइट्रोबेंजीन बन रहा है। हाँ, इसके आगे जो कहानी, हाँ बेंजीन ले लिया, फिर से बेंजीन NaNH ले लिया तो डायफिनाइल बन रहा है, दैट्स अनदर पार्ट। इसके आगे की कहानी ये वाला जो है ना, दिस पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन फ्यूचर इन डिटेल, दैट इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन, और इसकी बात हम लोग आगे करेंगे, नॉट राइट नाउ बट इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। और इसी से रिलेटेड एक टेस्ट भी होता है, तो जहां जहां ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट टेस्ट आते हैं वो सब तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो just to mention that if I want to prepare benzene itself, so then I can utilize the second reaction जो मैंने दिया था, like it will be like this, PHN2Cl plus H3PO2 plus H2 will be giving you this benzene, huh? But like I told you, I'll be having a discussion over something called coupling reaction. I'll be mentioning it, but in future we are going to discuss that in the chapter called aromatic compounds, ठीक है। ये इस तरह का कपलिंग रिएक्शन होता है, देखो यहाँ पे डाई वगैरह बनता है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ टेस्ट, है ना। तो ये कहानी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, आई विल राइट इट, विल बी डिस्कस्ड लेटर। ये हम लोग बाद में करने वाले हैं, जस्ट आई मेंशन दैट कि ये चीज नजर में आते रहेगी तो याद रहेगा धीरे धीरे। बट ये जो लिस्ट मैंने अभी दिया है अब से ये इंपॉर्टेंट हो गया फॉर एवरी चैप्टर, जहां जहां एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात होगी, बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स की बात होगी, यू विल बी फ्रीक्वेंटली गेटिंग दीज रिएक्शंस इन योर क्वेश्चंस, ठीक है। तो दैट्स अनदर पार्ट, एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं, अगेन दोज आर मेंशन इन एनसीईआरटी एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट।
पर्टिकुलरली मेंस में बहुत ही फ्रिक्वेंटली मुझे दिख रहा है ये सारे रिएक्शंस, मैंने पहले भी मेंशन किया था, पॉलीमराइजेशन एंड एरोमेटाइजेशन। तो ये पूरी कहानी जो है ना वो कैसे देखेंगे, और मैंने तुमको लास्ट टाइम मेंशन भी किया था हाइड्रोकार्बन के टाइम पे ही मैंने रिएक्शन दिखाया भी था, और एक क्वेश्चन भी आया था रिसेंटली तो उसमें भी यूज हुआ था। तो लाइक आई टोल्ड यू, जब मैंने अल्काइन की रिएक्शन बताई तो उसमें मेंशन किया था कि आगे जाके एरोमेटिसिटी में पढ़ेंगे हम लोग। व्हेन आई एम हैविंग एसिटिलीन और इथाइन being treated with red being passed through red hot tube, then ये दो दो कार्बन का ट्राइमेराइजेशन हो रहा है, दिस इज ट्राइमेराइजेशन। और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एरोमेटाइजेशन, क्योंकि एरोमेटिक रिंग बन रहा है हर बार, तो वैसा बन रहा है। अब इसी में मैंने तीन वेरिएशंस बताए थे, दिस इज फर्स्ट वेरिएशन व्हेन आई एम टेकिंग ओनली इथाइन और एसिटिलीन। दिस इज सेकेंड वेरिएशन वेयर वी आर टेकिंग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस थिंग, है ना, वन प्रोपाइन। तो दैट इज अनदर पार्ट। तो उसमें से एक एक्स्ट्रा जो CH3 था दैट इज मेकिंग टॉलवेन। उसी में इफ आई एम टेकिंग टू molecules of one propine and one molecule of ethyne, then I am going to get orthometa para xylene वाला पार्ट, है ना। वी आर गेटिंग OMP xylene। एंड देन उसके बाद इफ आई एम टेकिंग थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस वन प्रोपाइन itself, then what I am going to get, I am going to get mesitylene, है ना। This is called mesitylene। Any doubt? अब इस रिएक्शंस की को सपोर्ट कहाँ पे होता है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, इतनी आसानी से नहीं होता है, बट इफ यू आर मेंटेनिंग हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर दीज विल बी सपोर्टेड। व्हाई दीज आर गोइंग टू गेट सपोर्टेड, देखो हाई टेम्परेचर क्यों, तो ऑब्वियसली एंडोथर्मिक होने वाला रिएक्शन, दैट्स वन पार्ट। एंड दूसरा पार्ट देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग डिक्रीज, है ना। तो इन कंडीशन इसके लिए वो कंडीशंस बना के रखे गए। इसके अलावा इफ यू आर हैविंग हेक्सेन, हेप्टेन या ऑक्टेन, एंड इफ यू आर ट्रीटिंग देम विद Cr2O3 Al2O3 along with heat again, then again you will be getting that aromatic product out of these। तो एन हेक्सेन से बेंजीन बनेगा, एन हेप्टेन ले लिया, एक एक्स्ट्रा कार्बन आ गया, तो फिर वी हैव गॉट टोल्यूइन अगेन। इफ आई एम टेकिंग एन ऑक्टेन देन दो एक्स्ट्रा कार्बन आ गया, तो फिर ऑर्थोमेटा पैराजेलिन फिर से बन जाएगा। प्लस एक पॉसिबिलिटी ये भी कि दोनों कार्बन एक साथ हो जाए, दैट्स व्हाई वी कैन ऑल्सो गेट इथाइल बेंजीन। तो दीज आर द थ्री वेरिएशंस फॉर एन अल्कीन वाले केस से how to get the aromatic product। तो the reagent is Cr2O3 Al2O3 along with heat। Any doubt? ये सब रिएक्शंस में कुछ भी तुम्हारा ऐसा मैकेनिज्म वगैरह बता भी देते हैं, लेकिन किसी काम का नहीं रहता है। यू नीड टू नो द रिएक्शन इटसेल्फ, बिकॉज दे विल बी गिविंग यू सीरीज ऑफ रिएक्शन, जिसमें हो सकता है इथाइन या एसिटिलीन बन रहा हो, एंड देन दे विल बी गिविंग यू वन स्टेप फॉर रेड हॉट ट्यूब along with a higher temperature, and then बेंजीन बनेगा, और फिर बेंजीन से कहानी आगे बढ़ जाएगी ना। तो whenever you will be getting सीरीज ऑफ रिएक्शंस ना, तो वहां पर ये दोनों कंडीशंस या रिएजेंट्स याद रखना। रेड हॉट ट्यूब हाई टेम्परेचर बोले तो फिर से है एरोमेटिक रिंग बनाना है, जस्ट सी द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे आर यूटिलाइजिंग। और वैसा ही यहाँ पे भी इफ आई एम गेटिंग एन अल्केन अलोंग विद Cr2O3 Al2O3 हीट, तो फिर से वो हम लोग बेंजीन डेरिवेटिव्स में जा रहे हैं ना। तो दीज आर द टू रिएक्शंस जो कि सीरीज ऑफ रिएक्शन में पार्ट ऑफ रिएक्शन बन के आ जाता है, ठीक है। दिस विल बी वन ऑफ द मेनी रिएक्शंस गिवन टू यू इन द सीरीज। एनी डाउट? any doubt up to this point? Because this was the completion of your preparation of benzene, या फिर हाइड्रो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी जो बन रहे थे वो भी एक्स्ट्रा बनता जा रहा था ना। तो these are the reactions। any doubt just ask me, because we are going to now enter into the properties of benzene and थोड़े बहुत एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की भी प्रॉपर्टीज उसी में कवर हो जाएगी। एंड बाद में तो हम लोग पूरा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखने ही वाले हैं। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो कहानी है दैट वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, दैट बेंजीन रिंग इज अ वेरी स्टेबल रिंग बिकॉज ऑफ इट्स एरोमेटिसिटी, एंड दैट वाज द इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज द नॉर्मल रेजोनेंस एनर्जी जितना 3 पाई बॉन्ड से होना चाहिए ना, उससे काफी ज्यादा आता है व्हेन वी हैव गॉट द साइक्लिक कंजुगेशन ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एरोमेटिक। एरोमेटिक वर्ड आया एरोमा वर्ड से, है ना। तो दीज आर हैविंग, दीज बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स आर हैविंग particular kind of fragrance, if you like it you will be calling it aroma, है ना। तो एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक वर्ड आया वहीं से है, बट उसका फिर बाद में टेक्निकल डेफिनेशन बनाता है ना, हम लोगों ने पढ़ा है वो, ठीक है। तो
In that sense, we can have the aromatic ring, which is having very high resonance energy due to its aromaticity, and that's why it will not be giving you many typical reactions, particularly जो हम लोग addition reaction बोलते थे, that was the characteristic of alkene और multiple bond और unsaturation. वो सारे reactions देखोगे ना, पता चलेगा कि बेंजीन is not going to give you those reactions. जैसे I'll be giving you some of the examples. जैसे मान लो अपने पास बेंजीन रिंग है, एंड इफ आई एम ट्राइंग टू गिव इट, देखो अल्कीन पे Br2 CCl4 से एडिशन होता था, बट इफ आई गिव यू ना कि Br2 CCl4 अगर मैंने यहां बेंजीन पे दिया है, तो देन यू विल नॉट हैव एनी रिएक्शन. डबल बॉन्ड पे तो होता था, हम लोगों ने हेलोजेनेशन पढ़ा है डबल बॉन्ड का, है ना. तो दैट वाज वन पार्ट. वैसे ही इफ आई एम ट्रीटिंग इट विद KMnO4 OH माइनस कोल्ड एंड डाइल्यूट, और ये भी हम लोगों ने पढ़ा है दैट वाज हैविंग हाइड्रोक्सिलेशन फॉर द अल्कीन वाला पार्ट, वो पार्ट भी नहीं होगा यहाँ पे. सो दैट इज नॉट नो रिएक्शन अगेन हेयर. बेयर्स रिएजेंट इसी को बोलते थे ना, दिस वाज कॉल्ड. ओके, दिस रिएक्शन विल आल्सो बी नॉट बी गिवन बाय द बेंजीन. वैसा ही H+H2O जो हाइड्रेशन का रिएक्शन पढ़ते थे, वो भी अगर मैंने यहाँ पर H+H2O सिंपली दे दिया है, तो देन इट विल नॉट हैव एनी रिएक्शन. Which means many typical reaction of alkene, alkyne or unsaturated CC bonds will not be given by benzene ring because of its aromaticity. वैसा ही H2Ni का लिए जनरल कोई रिएक्शन नहीं होता है, generally no reaction, but if you are treating it under a very high temperature and pressure condition, then it will happen. But अगर मैंने यहीं पे if I have given you H2Ni at high temperature and pressure, then it will happen. तो फिर ये साइक्लोहेक्सेन दे देगा. ठीक है, बिकॉज साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है. हम लोगों ने वो चीज चार्ट से पढ़ा भी था जब एरोमेटिसिटी पढ़ा था, दैट हाइड्रोजनेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना, उसमें एनर्जी रिलीज होती है. दैट मीन्स साइक्लोहेक्सेन इज हैविंग मोर स्टेबिलिटी देन द बेंजीन. व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम बेंजीन टू साइक्लोहेक्सेन, द एनर्जी विल बी रिलीज, एंड दैट्स व्हाई इफ यू आर कीपिंग अ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिस रिएक्शन विल हैपन. इज इट ओके? एनी डाउट अबाउट दिस? So we have got a list of reactions which are not going to be given by benzene ring. I'll just show you जो examples मैंने यहाँ mention किए हैं ना, उसमें से there are some reactions which will be given by cyclohexene दे देगा या normal alkene दे देगा, बट ये बेंजीन नहीं देने वाला. स्टार्ट के सारे रिएक्शंस तो मैंने ऑलरेडी बता दिए तुमको, बट ये जैसे ब्रोमिनेशन में देखो साइक्लोहेक्सीन इज एबल टू गिव यू दैट रिएक्शन, बट बेंजीन इज नॉट गोइंग टू गिव यू दैट रिएक्शन, है ना. तो ये पूरी जो लिमिटेशन है ना, उसको मैंने समराइज करके दिया हुआ है. जब Br2 इज कलर्ड एंड अगर वो रिएक्शन दे देता तो कलर विल डिसअपियर, बट बेंजीन इज नॉट गोइंग टू डीकलराइज ब्रोमीन वाटर. दैट्स वन पार्ट. दूसरा पार्ट वैसे ही ब्रोमीन कैन नॉट डीकलराइज पर्पल और पिंक कलर ऑफ बेयर्स रिएजेंट, वही सेकेंड रिएक्शन जो था. थर्ड रिएक्शन, बेंजीन कैन नॉट अंडरगो पॉलीमराइजेशन लाइक इथीन. इथीन से जैसे पॉलीथीन बनता है, वैसे बेंजीन से पॉलीमराइजेशन करना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क, प्रैक्टिकली नहीं होता है. एंड लास्ट पॉइंट इज बेंजीन डजंट शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन लाइक नॉर्मल अल्कीन और अल्काइन. ये पूरे एग्जांपल सारे वही थे ना. एनी डाउट इन दिस पार्ट? because now we'll be talking about the reactions which are going to be given by benzene. स्टार्ट के एक दो रिएक्शन तो सिंपल वाले रहेंगे, बट उसके बाद फिर देन विल बी एंटरिंग इनटू समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? चलो ठीक है, फिर रिएक्शंस में जाते हैं. स्टार्ट के कुछ रिएक्शंस बहुत ही सिंपल वाले हैं, जैसे कंबशन रिएक्शन हम लोगों ने कहे बहुत पहले से स्टोइक्योमेट्री से ही यूज करना स्टार्ट कर दिया है, फिर थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज किया था. दिस इज द कंबशन रिएक्शन. अब इसमें से फिजिकल केमिस्ट्री में अगर मैं लेके जाऊंगा इसको, तो इसका मैं अगर डेल्टा एनजी पूछूंगा इस रिएक्शन का, तो विल बी सेइंग इट विल बी 6 - 7.5, है ना. तो दैट इज -1.5, बिकॉज ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, तो इनको तो लेंगे नहीं, तो ये हो गया. और उसी के हिसाब से विल से दैट डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू
प्लस डेल्टा एनजीआरटी की जगह विल राइट -1.5 RT है ना. तो दिस इज वन ऑफ द रिलेशन वी कैन टॉक अबाउट दैट. इज इट ओके? So we can write here delta H will be equal to delta U minus 1.5 RT या 3/2 RT, ऐसा कुछ भी लिख दे. तो दैट विल बी द रिलेशन. उसमें से कोई एक दे दे तो दूसरा पूछ सकता है ना एट अ गिवन टेम्परेचर. दैट्स वन पार्ट. सेकेंड थिंग इज दैट रिडक्शन वाला जो हम लोगों ने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाया था वो पार्ट हो सकता है यहाँ पे. और वो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था दैट बेंजीन रिंग को ऐसा देखने का है जैसे वी हैव गॉट दिस एंड वी हैव गॉट थ्री सेक्शंस जिसकी ओजोनोलिसिस कर रहे हैं हम लोग. तो यहाँ से किया, यहाँ से किया, यहाँ से ब्रेक किया. वी आर गेटिंग द आइडेंटिकल सेक्शंस. तो यहीं से ये सी एच ओ बनेगा एंड हर जगह यही बनने वाला है. एवरीवेयर विल बी गेटिंग थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस ओनली है ना. दैट इज कॉल्ड ग्राइगजल. तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. दैट्स अनदर पार्ट. इसी में लेकिन बोला था मैंने कि जस्ट बी कॉशियस इफ यू हैव बीन गिवन अगेन दिस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बट यू हैव बीन गिवन ऐसा कुछ दे दिया है. देन वी हैव टू सी इट इन टू वेज एंड देन प्रोडक्ट निकालना है. वन इज आई विल बी राइटिंग बोथ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर. एक ऐसा लिखा और दूसरा दूसरे साइड वाला लिख दिया. एंड दैट्स हाउ विल बी गेटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स अगेन. सो जैसे यहाँ पे इफ आई एम राइटिंग दिस आई विल बी गेटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स है ना. तो जैसे यहाँ से इफ आई एम ब्रेकिंग इट ना, देखो यहाँ से क्या क्या मिलेगा. तो विल बी गेटिंग COCH3. जहाँ पे CH3 ब्रांच्ड है वहां पे कीटोन मिलेगा और दूसरी जगह CHO मिलेगा. और ऐसा दो मॉलिक्यूल के साथ होगा प्लस. तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट एंड CHO एक तीसरे वाले पार्ट से जहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं है. इससे क्या मिलेगा? इफ आई एम ब्रेकिंग इट तो वी आर गोइंग टू गेट दो जगह तो ग्लाइकोजल मिल जाएगा एंड एक जगह वी आर गोइंग टू गेट कीटोन एट बोथ द प्लेसेस है ना. COCH3 एंड देन COCH3 है ना. तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस पार्ट की जहां वो ब्रांचिंग दे देते हैं वहां पे यू नीड टू बी केयरफुल. एनी डाउट? तो ये दूसरा रिएक्शन था. थर्ड रिएक्शन इफ दे आर मेंशनिंग समथिंग कॉल्ड क्लोरिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन या फिर वो टेम्परेचर हाई मेंशन कर दें. हाई भी नहीं, मीडियम कहते हैं इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में. तो 500 केल्विन, इट्स लाइक 227 डिग्री C. तो इन दैट केस व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट बेंजीन हेक्साक्लोराइड. उसी को BHC बोलते हैं या गैमेक्सिन पाउडर बोलते हैं. इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में यूज किया जाता है इसको. खेतों वगैरह में छिड़का जाता है जहाँ कीड़े वगैरह लग जाते हैं खेत में तब. तो दैट इज वन ऑफ द यूज ऑफ इट. और भी यूजेस हैं बट मेनली दिस इज द मेन यूज ऑफ इट. जैसे वॉर वगैरह में भी यूज किया जाता है बट अभी के लिए जो हम लोगों को जानना है दैट इज दिस इज द यूज ऑफ गैमेक्सिन. और लिंडेन भी बोलते हैं या BHC बोलते हैं. BHC 666 बोला हुआ है. दैट मीन्स इसका फॉर्मूला अगर ध्यान से देखोगे ना तो वी हैव गॉट C6H6Cl6 है ना. इसलिए इसको BHC 666 बोला गया है. इज इट ओके? बट दीज रिएक्शंस आर गिवन इन NCERT एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. एक रेजोनेंस एनर्जी वाला क्वेश्चन देता हूँ, वो ट्राई कर लो एक बार. Try this question, this numerical. Any answer?
Any answer? When they are talking about resonance enthalpy, what will the reaction for which delta H will be equal to resonance enthalpy? So that is going from the most stable canonical structure, कोई भी एक ले लो ये और this to resonance hybrid, that reaction का delta H is called resonance enthalpy, है ना? I'm going to call it delta H1, delta H2, delta H3 इसको ले लेता हूँ, ठीक है? And I'll be writing one more reaction, which is I'll be taking one of these structures, कोई भी एक ले लो, ऐसा ले लिया, and then 3H2 giving cyclohexane, and I'm calling it delta H4. Now, can you tell me what is the value of delta H4? Delta H4 will be coming from here. If I ask you what is the value of delta H4, it will be 3 times delta H1, है ना? क्योंकि 3 बार हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस हो रहा है, दैट्स व्हाई विल कॉल इट, विल से दैट इट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा H1. एक डबल बॉन्ड के हाइड्रोजनेशन में वी आर गेटिंग -28.6, तो दैट्स व्हाई 3 डबल बॉन्ड के हाइड्रोजनेशन में विल बी गेटिंग 3 टाइम्स ऑफ दैट, एंड दैट्स व्हाई इट विल बिकम 3 टाइम्स -28.6. so that will become 84 plus 1, 85 minus 85.8, है ना? This much k क्या? Any doubt? And now I can observe that if I want, I'm calling this one as 1, this one as 2, this one as 3, and this one as 4. Now I want a third reaction out of 2 and 4, है ना? तो I can say that कि 4 minus 2 करने से we'll be getting that, है ना? ये देखो यहाँ पर 3H2 आएगा, ये ना, उसी से बनेगा. So what we are saying that कि if I'm doing 4 minus 2, I'll be getting 3. ओके, 4 को एज इट इज रहने दो, 2 को अपोजिट कर दो, रिवर्स कर दो, देन विल बी गेटिंग दिस रिएक्शन थर्ड वाला, है ना? एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि ये डेल्टा H3 जो है ना, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा H4 माइनस डेल्टा H2, एंड विच इज इक्वल टू डेल्टा H4 इज -85.8 and minus delta H2 is -49.8. That's in kilocalorie. Which is, if you calculate that, so I'll be getting negative sign. Obviously, resonance में energy release होती है, and that's why resonance enthalpy will have negative sign. They are asking you resonance enthalpy itself, and that's why we are writing this will become -36 kcal. And that's why we are saying we needed that delta S3 only, which is resonance enthalpy. So resonance enthalpy, energy में तो value लिख देते हैं सीधा, but resonance enthalpy of benzene is equal to -36 kcal per mole. Okay. Any doubt? So this was one numerical question. You'll rarely be getting the exact right numerical question from organic chemistry, but there are some sections in which you'll be getting these kind of reactions. Okay. So this is another part. Any doubt up to this point? Because we are going to enter into the most important part of this chapter, which is called electrophilic aromatic substitution. We'll also talk about nucleophilic aromatic substitution, but अभी नहीं. When we will be going to that aromatic compounds ना, तो वहां पे उसकी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा relevant है नहीं वो, और यहाँ पर वो चैप्टर के सिलेबस में mentioned भी नहीं है. But when we will be going to aromatic compounds ना, तो then we'll be talking about nucleophilic substitution also in the बेंजीन डेरिवेटिव, बट क्योंकि उसके लिए स्पेशल केसेस हैं, इसलिए उसकी बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ. बट विल बी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. इफ यू सी इट केयरफुली ना, अभी जो मैंने कुछ रिएक्शंस की बात की थी कि जो नहीं दे पाता है, उसमें मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोला था, है ना? Why this was benzene ring or benzene derivative is not going to give you electrophilic addition reaction directly like normal alkene or alkyne, because
दैट विल कॉस्ट इट एट्स एरोमेटिसिटी, है ना। मान लो मैंने इसको अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा दिया ना, तो इट विल लूज इट्स एरोमेटिसिटी, एंड दैट्स व्हाई इट इज रेजिस्टिंग दैट रिएक्शन in which electrophile is getting added at the cost of loss of aromaticity. Is it okay? But if I am having somehow कुछ तो ऐसा मैकेनिज्म हो जाए कि इलेक्ट्रोफाइल आए तो बट एरोमेटिसिटी लूज ना हो, देन दैट रिएक्शन कैन हैपन विद बेंजीन, है ना। तो उसी रिएक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं। एंड अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोफाइल so many times because benzene ring is having an electron cloud, है ना, तो that will naturally be attracting an electrophile only, है ना। तो that's why हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की बात की है अभी तक। एंड इलेक्ट्रोफाइल के अटैक में द प्रॉब्लम विद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज दैट बेंजीन हैज टू लूज इट्स एरोमेटिसिटी व्हाइल इट इज अंडरगोइंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि एडिशन में तो डबल बॉन्ड चला जाता है ना, तो एक भी डबल बॉन्ड चला गया तो इसकी एरोमेटिसिटी चली गई, एंड दैट्स व्हाई इट वाज नॉट शोइंग यू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बट इट कैन शो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, उसी के बहुत सारे नाम है, EAS, ESR, ARSE, SEAR, सब नाम बोलते हैं। तो हो क्या रहा है, लाइक आई हैव रिटन हियर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेंजीन कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रोफाइल्स, हेंस द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन फॉर बेंजीन इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, नॉट एडिशन। ठीक है, एडिशन नहीं लिखा है मैंने यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन लिखा है, बिकॉज इसमें होगा क्या ना, इलेक्ट्रोफाइल विल बी अटैकिंग ओवर इट, बट अल्टीमेटली बेंजीन विल नॉट लूज इट्स एरोमेटिसिटी इन द ओवरऑल रिएक्शन, बीच में लूज करता है, but ultimately it will regain its aromaticity, and that's why we are saying that कि benzene ring is going to show electrophilic aromatic substitution, जिसमें इसका एक हाइड्रोजन एटम जो है ना, that will be replaced by an electrophile। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल जब भी आएगा तो किस टाइप के रिएक्शन शो करेगा, इफ आई एम हैविंग जनरल रिएक्शन कैसा दिखेगा तुमको, इफ आई एम शोइंग इट लाइक आई एम हैविंग दिस बेंजीन रिंग, इस पे कोई H है, and then electrophile will be coming over it, that is going to replace this H, तो H प्लस निकल जाएगा और वहां पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो फाइनली दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज नॉट एडिशन रिएक्शन, एंड बिकॉज ये इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से हो रहा है, तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। वी कैन शो इट लाइक कि H इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रोफाइल, है ना, दिस इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय दिस, तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कॉल इट दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एनी डाउट? तो अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, बिकॉज मैकेनिज्म इज इंपॉर्टेंट, तो आई शो यू दैट मैकेनिज्म कैसा दिखेगा, एंड देन आई एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। मैकेनिज्म कैसा दिखता है, तो इसके दो स्टेजेस होते हैं, एक होता है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल विल गेट अटैच टू द बेंजीन रिंग, एंड देन इन द सेकेंड स्टेप H विल बी गोइंग आउट इन द फॉर्म ऑफ H प्लस। तो ये जो दो स्टेप्स है ना, ये कैसे दिखते हैं और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दैट विल डिस्कस। फर्स्ट आई शो यू दो द स्टेप्स, इफ यू सी इट, दीज आर द स्टेप्स वी आर टॉकिंग अबाउट। तो देखो पहले स्टेप में, जिसको स्लो मैंने बोला है, यहाँ देखो इलेक्ट्रोफाइल इज कमिंग टू इट एंड देन इट इज गेटिंग एन इंटरमीडिएट, है ना, इसी को सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोला है, दिस इज द इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, है ना, दिस इज इंटरमीडिएट, एंड दैट इंटरमीडिएट इज हैविंग रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बट नॉट एरोमेटिसिटी, है ना। तो ये जो आ रहा है, दिस इज नॉट एरोमेटिक बट इट हैज गॉट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, है ना, एरोमेटिसिटी हैज बीन लॉस्ट बाय इट। बट अगले स्टेप में देखोगे ये जो H था वो अब निकल जाएगा, एंड व्हाइल लूजिंग दिस इंटरमीडिएट इज लूजिंग H, इट इज रीगेनिंग द एरोमेटिसिटी, है ना। तो यहाँ पे दिस इज एरोमेटिक, फाइनली ऑल्सो इट इज एरोमेटिक ओनली, बट इन बिटवीन दैट प्रोसेस द कंपाउंड इज लूजिंग इट्स एरोमेटिसिटी। तो पहले स्टेप में देर इज लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, इन सेकेंड स्टेप देर इज गेन ऑफ एरोमेटिसिटी। डेफिनेटली द फर्स्ट स्टेप वेयर इट इज लूजिंग द एरोमेटिसिटी विल बी द स्लोअर स्टेप, है ना, एंड दैट्स व्हाई दैट्स द RDS स्टेप। इज इट ओके? एनी डाउट? तो ये जो इंटरमीडिएट बना है, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, बिकॉज द फर्स्ट स्टेप इन विच द इंटरमीडिएट इज बीइंग फॉर्म्ड दैट इज द RDS ना। सो विल राइट ओवरऑल पॉइंट, ओवरऑल रिएक्शन कैसा दिख रहा है, एंड इसके लिए हम लोग एनर्जी डायग्राम भी बनाएंगे। सो ओवरऑल रिएक्शन में सबसे पहले क्या हुआ है,
विल बी हैविंग, या तो मैंने ई प्लस दिखा दिया, बट प्रैक्टिकली जब हम लोग जाएंगे ना, जो 5 टाइप के रिएक्शंस हम लोगों को पढ़ने हैं, इन दो रिएक्शंस यू विल ऑब्जर्व दैट फर्स्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट एन इलेक्ट्रोफाइल, एंड देन उसके बाद फिर दैट इज गोइंग टू अटैक ओवर द बेंजीन रिंग. सो फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, जो ऊपर नहीं दिखा बिकॉज हम लोगों ने सीधा ई प्लस लिख दिया. ऐसा ई प्लस करके कोई सब्सटेंस आता नहीं है. तो विल ऑलवेज हैव अ न्यूट्रल कंपाउंड विच इज गोइंग टू जनरेट, विच इज गोइंग टू प्रोवाइड दैट इलेक्ट्रोफाइल, है ना. तो वहां से जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की बात होगी. सेकेंड थिंग इज इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू अटैक ओवर द एरोमेटिक रिंग, एंड दैट्स व्हाई द रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, बट इट इज नॉट एरोमेटिक, है ना. रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो मिल रहा है, जिसको वीलैंड कॉम्प्लेक्स बोला है या सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोला है या इंटरमीडिएट ड्यूरिंग ईएस, वी कैन से दैट कि दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, it is having a resonance hybrid, but it is not aromatic. And then fourth point is H plus is going to leave the compound, and that's how aromaticity is coming back, while H being replaced by the electrophile. Any doubt? Any doubt? चलो, तो ये कहानी समझने के बाद आई विल बी शोइंग यू द डायग्राम, एनर्जी डायग्राम, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे पहले, अभी थोड़ी देर पहले, कि विल बी हैविंग दिस एनर्जी डायग्राम. वी नीड टू डिस्कस दिस डायग्राम बिकॉज यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनने लगते हैं, एंड विल बी हैविंग सम वेरिएशंस इन फ्यूचर आल्सो. तो ये एक टिपिकल डायग्राम है फॉर इन जनरल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का. हाईएस्ट और हायर एक्टिवेशन एनर्जी इज कमिंग फॉर first step, because we know that कि in first step it is going to lose the aromaticity, है ना. Is it okay? Second का देखो EA2 बहुत ही कम है, तो we are saying that कि EA1 is much much greater than, अभी के लिए मैं EA1 greater than EA2 लिख देता हूँ. that means first step is slower and hence the RDS. And why it is slower? Because फर्स्ट स्टेप में वी आर गोइंग टू हैव लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, है ना. पहले स्टेप में व्हाई वी आर गेटिंग दिस एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर देन द सेकंड, बिकॉज इट इज हैविंग लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी in this step, and in second step there is gain of aromaticity, है ना. Any doubt to this point? नो, अब ये जो मैंने दिखाया है ना, नॉर्मली ये टिपिकल मैंने बोला है, यही कहानी जो है ना सल्फोनेशन में जो स्टेप 2 का ग्राफ है ना, ये लगभग लगभग इसके बराबर आ जाता है. अभी तो देखो ये ऊपर दिख रहा है ना, ये सेकंड वाला में ये जो है ना, यही कहानी तुम्हारी सल्फोनेशन में व्हेन विल गो ना, विल सी दैट कि ये कहानी, ये रेड से मैं दिखा रहा हूँ, दिस विल बी कमिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ आएगा. तो ये जो रेड वाला मैंने दिखा है ना, दिस इज वैलिड फॉर सल्फोनेशन. we'll talk about that later, but just wanted to show you कि टिपिकल कैसा है, और एक केस में वी आर गेटिंग दैट एक्सेप्शन दैट दिस विल बी टचिंग द लेवल ऑफ स्टेप 1 का हाईएस्ट पॉइंट. दैट मीन्स लेवल 1 का ट्रांजिशन स्टेट जैसे स्टेबिलिटी या एनर्जी स्टेप 2 के भी ट्रांजिशन स्टेट की हो जाएगी व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सल्फोनेशन वाला पार्ट. बट इन जनरल वी आर सेइंग दैट कि EA1 तो ग्रेटर है EA2 से, बट एनर्जी लेवल ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ स्टेप 2 इज ऑल्सो लेस देन दैट ऑफ स्टेप 1, है ना. अब ये पूरी कहानी में ध्यान से देखो, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट सो मच अबाउट द मैकेनिज्म, बिकॉज इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैकेनिज्म से ही बनते हैं. एम आई ब्रेकिंग CH बॉन्ड ड्यूरिंग द RDS? एम आई ब्रेकिंग CH बॉन्ड ड्यूरिंग द RDS? RDS इज द फर्स्ट स्टेप में CH बॉन्ड तो ब्रेक ही नहीं हुआ है ना. एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि CH बॉन्ड की जगह अगर CD भी होता ना, तो दैट इज प्रैक्टिकली नॉट अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना. इज इट ओके? एंड दैट्स व्हाई इफ दे आर आस्किंग यू द रेट ऑफ रिएक्शन या फिर इस तरह का कुछ भी कंपैरिजन करवा देना, इफ आई एम जस्ट रिप्लेसिंग H बाय D और T ना, it is going to practically not affect the rate of reaction. So if I am talking about these three reactions for a given E plus generally if it is not sulfonation, मैंने हिंट दिया तुमको, सल्फोनेशन में थोड़ी सी कहानी बदल जाएगी, बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल ES के लिए रेट ऑफ रिएक्शन अगर R1 R2 R3 है, तो विल से दैट practically R1 will be very close to R2 and R3, है ना. there is no change because अब इसका रीजन अगर पूछेगा तो विल से दैट the CH bond is not being broken in the RDS, है ना. CH या D या T वाला जो बॉन्ड है ना,
is not cleaved in RDS, which is step 1. Okay, that's the reason. Any doubt? So we can also say that it will not show significant, or it will not show primary kinetic isotopic effect, है ना? So this EAS doesn't show primary kinetic isotopic effect. Is it okay? Any doubt about this point? अब यहाँ पे लाइक आई टोल्ड यू, उन्होंने दो बातें की थी सिलेबस में. एक बोला सिंपली ईएस की बात कर लो, 5 टाइप के रिएक्शंस थे. आई विल शो यू द सिलेबस अगेन. दे टॉक्ड अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हैलोजेनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन. ठीक है, दीज आर द 5 रिएक्शंस. बट उसके बाद जब इफेक्ट ऑफ डायरेक्टिंग ग्रुप्स की बात की ना, तो इट टॉक्ड अबाउट ओनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. मतलब देयर इज वन ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, एंड देन इफ दे आर आस्किंग यू मेजर प्रोडक्ट में जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कौन से पोजीशन पे आएगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. बट मोनो के अलावा मैं कुछ एग्जांपल डाई सब्स्टिट्यूट के भी दे दूंगा, सो दैट यू गेट द आइडिया कि अगर ऐसा कुछ आगे पीछे आया, जो कि नॉर्मली तुम्हारे कोचिंग में आता है, जेई विल बी टेकिंग केयर ऑफ इस सिलेबस ऑल्सो. तो बट वहां पे तुमको आइडिया लग जाएगा इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक, तो वहां से काम हो जाएगा तुम्हारा. ठीक है, दैट्स वन पार्ट. लास्ट में मैं एक दो चीजें नेफ्थलीन के बारे में, या फिर अपने पास अगर फ्यूरान वगैरह है या पायरॉल वगैरह है, तो वहां पे क्या करते हैं वो भी मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा ईएस में क्या होता है. ठीक है, नॉट रिटन इन द सिलेबस ऑफिशियली, बट अगर पूछा तो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग इट. तो यहाँ देखो, मोनो सब्स्टिट्यूशन वाली कहानी तो बहुत ही क्लियर है. वी हैव गॉट वन हाइड्रोजन, और सारे हाइड्रोजन एक जैसे है ना, कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है. तो वन हाइड्रोजन बीइंग रिप्लेस्ड बाय ई, दैट इज द मोनो सब्स्टिट्यूशन, है ना. डाई सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? Already we are having one group present there, and then we are trying to get the डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. तो इसमें दो तरह के केस होंगे. पहला केस क्या है ना, देखो मैंने दो चीजें बोल्ड में दिख रहे हैं, एक थोड़ा सा फेडेड दिख रहा है. सो देन इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली ना, तो यहाँ जो ग्रुप है ऑलरेडी, दिस इज द ग्रुप जिसकी बात हो रही है कि ऑलरेडी इट वाज अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग. देन इट इज कमिंग, ई इज कमिंग एट ऑर्थो, or E is coming at para position. This is one case, but we can have another case. What is the logic behind that? We'll discuss that also. But एक दूसरा केस बन सकता है in which the group is already present there. Group is already present there, and the electrophile will be coming at the meta position. At meta. ये जो ग्रीन वाला ग्रुप दिख रहा है ना, जिसको मैंने बोला कि जिसके प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू कम एट ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो एंड पैरा इनफैक्ट, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. एंड ये जो ब्लू वाला ग्रुप दिख रहा है ना, ये ब्लू वाला ग्रुप जो दिख रहा है ना, जिसके प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल इज कमिंग एट इट्स मेटा पोजिशन, दिस इज कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. ओके, ये मैंने टेबल तुमको जीओसी के टाइम पे ही दे दिया था, जस्ट टू गिव यू द आइडिया कि कौन सा ग्रुप कैसा एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करता है. तो हम लोगों ने वहां पर मैंने एक टेबल दिया था, बट आई विल बी गिविंग यू दैट टेबल अगेन सो दैट यू गेट द आइडिया कि क्या होने वाला है. बट इसका लॉजिक क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं तुमको. आई विल गिव यू द एग्जांपल, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो एग्जांपल्स, मान लो अपने पास जो ग्रुप है ना वो है OH. ठीक है, अपने पास जो ग्रुप है वो है OH, और फिर यहां पे मैंने कोई इलेक्ट्रोफाइल भेजा. तो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन विल बी हैविंग? इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू अप्रोच एनी वन हाइड्रोजन. तो पहले इट विल गेट अटैच टू द डबल बॉन्ड, एंड वी नो दैट कि जहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है उसके बाजू वाले पे प्लस आता है ना. तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैंने OH यहां रखा हुआ है, अगर मैं इस इलेक्ट्रोफाइल को यहां पे अटैच करता हूं ना, तो फिर प्लस विल बी कमिंग ओवर हेयर. इज इट ओके? तो मान लो मैंने यहाँ पे इसको अटैच कर दिया, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा. तो दैट प्लस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, है ना. दिस कार्बोकेटायन डबल बॉन्ड के साथ तो है ही है,
दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बाय इवन OH ग्रुप, है ना. कार्बोकेटायन इज resonance stabilized by OH group. ठीक है. मान लो इसी में मैंने दूसरा कंडीशन क्रिएट किया होता वेयर आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू इलेक्ट्रोफाइल एट द मेटा पोजिशन, एट द ऑर्थो पोजिशन. तीनों केस देख लेते हैं एक बार, अभी मेटा देखते हैं. तो मेटा पे एट ऑर्थो मैंने रख के देखा, देन आई एम गेटिंग दिस. इफ आई एम पुटिंग इट एट मेटा, देखो ना क्या हो रहा है यहाँ पे. अगर मेटा पे रखा ना somehow, तो आई एम गेटिंग OH यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड इधर वाले में. इफ आई एम पुटिंग इट इन अनदर केस, इफ आई एम पुटिंग इट हेयर, अगर मैंने यहाँ रख दिया तो मेटा पे आएगा. अगर ये यहाँ पे E आया ना तो यहाँ पे प्लस आएगा. एंड देन आई एम गेटिंग डबल बॉन्ड हेयर. तो डबल बॉन्ड के साथ तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बट OH ग्रुप इज नॉट गोइंग टू इम्पोज इट्स रेजोनेंस इफेक्ट थ्रू दैट इट कैन स्टेबलाइज इट. देखो अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर में लिखूंगा, यहाँ पे प्लस आएगा एंड देन विल बी गेटिंग यहाँ पे, यहाँ OH एंड देन यहाँ पे E है. अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखूंगा मैं, तो आई विल बी गेटिंग दिस वन, दिस वन, OH एंड यहाँ पे प्लस, है ना. तो नाउ व्हाट माय पॉइंट वाज कि व्हेन आई एम हैविंग OH ग्रुप, पहली बात इसके पास रेजोनेंस प्लस एम इफेक्ट था, बट दैट इज नॉट गोइंग टू स्टेबलाइज दिस कार्बोकेटाइन, है ना. तो व्हाट वी आर सेइंग दैट कि कार्बोकेटाइन इज नॉट गेटिंग स्टेबलाइज थ्रू, इनफैक्ट माइनस आई के थ्रू डिस्टेबलाइज होगा, बट प्लस एम के थ्रू स्टेबलाइज नहीं हो रहा है ना. तो कार्बोकेटाइन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बाय OH ग्रुप. ओके. बट यही मैंने अगर इसके पैरा पोजिशन पे ऐड कर दिया, if I'm adding it at the para position, again third case I am taking, if I'm adding this E plus at para पे, देखो क्या होगा. पैरा पे जैसे ही मैं ऐड करूंगा ना, जैसे यहां मैंने I've added it at para position, यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड करते ही विल बी गेटिंग प्लस ओवर एयर, है ना. बाकी सब तो ऐसा ही है. अभी देखो इसका अगला ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर मैं लिखूंगा ना, तो आई विल बी हैविंग दिस प्लस कमिंग ओवर हेयर एंड यहाँ पे प्लस आ जाएगा ना. इज इट ओके? एंड जैसे ही आ गया, नाउ वी आर सेइंग दैट इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बाय OH ग्रुप. ओके. वैकेंट ऑर्बिटल सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, है ना. दैट वाज द कॉम्बिनेशन जिसको बैक बॉन्डिंग भी बोलते थे, रेजोनेंस भी बोलते थे ना. सो दैट्स व्हाई OH ग्रुप विच इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, जिसको हम लोगों ने बोला था, दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. दैट्स व्हाई इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या हुआ, तो दैट इज OH group is ortho para directing group in EAS. ठीक है. एनी डाउट? तो ये ग्रुप्स जब भी आएंगे ना, तो उसकी बात हम लोग ऐसे भी करने ही वाले हैं कि ये ग्रुप्स कौन कौन से हैं और कहाँ पे लेके आएंगे, तो इसकी बात हम लोग आगे करेंगे. बट उसके पहले विल बी सीइंग ऑल दोज 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जिसकी बात मैंने अभी कही थी कि हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन है. ठीक है. तो ये जो पूरी कहानी है इसको हम लोग आगे देखते हैं. सो सबसे पहले विल स्टार्ट विद हेलोजिनेशन. हेलोजिनेशन में सिंपल सी कहानी है, there will be some source which is going to give you X plus आएगा, तभी तो we are talking about electrophiles, है ना. तो यहाँ क्या होगा ना, we'll be having
X2 in general, and that will be along with some Lewis acid. ठीक है, जैसे FeBr3 है तो ये क्या करेगा ना, Br2 प्लस FeBr3, ये क्या करेगा, दिस विल बी गिविंग यू Br प्लस निकाल देगा एंड देन FeBr4 माइनस बना देगा. ऐसा करने से वी हैव गॉट Br प्लस एज एन इलेक्ट्रोफाइल and that will be attached with the benzene ring, है ना. वैसा ही Br2 AlCl3 के साथ यही काम करेगा. तो we can have Br या Cl2 या Br2 in general, we can have X2 along with some Lewis acid. अब वो Lewis acids क्या क्या हो सकते हैं, I'll give you a list ताकि देख के पता चल जाए. तो now, तो जो मैंने पहला स्टेप बोला था, ऑलवेज यू विल हैव द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल. आई वाज टॉकिंग अबाउट दीस टाइप ऑफ रिएक्शंस ओनली. सो ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन कराना है तो दैट रिक्वायर्स अ लुईस एसिड कैटलिस्ट सच एज FeBr3, AlBr3, FeCl3, AlCl3, ये सारी चीजें हैं. एंड देन it will be able to, it will capture X minus and that's why it will be generating X plus, है ना. And that is the real attacking electrophile, RAE इसी को शॉर्ट में बोल देते हैं, not required to memorize it. जो attacking electrophile है that is X plus only. अभी कैटलिस्ट क्या क्या हो सकता है, तो like I told you AlCl3, BF3, FeCl3, सब सारा कुछ हो सकता है. Even the metal can be there, Fe भी रहेगा तो that will capture Br minus, है ना. And that's why it will be generating Br plus. तो Zn रहे, Fe रहे, Al रहे, ये सब भी रहेगा तो will be having the same reaction. Any doubt in this part? मैकेनिज्म ऑलरेडी मैंने तुमको समझा दिया कि कैसे होता है. तो जैसे ब्रोमिनेशन का मैकेनिज्म कैसा दिखेगा, Br2 का Br माइनस विल बी कैप्चर्ड बाय FeBr एंड दैट सॉ और Fe एंड दैट सॉ विल बी गेटिंग, आई विल राइट हियर Br3 है ये Br4 माइनस मिल जाएगा एंड देन दैट सॉ वी आर गेटिंग Br प्लस एंड दैट इज गोइंग टू एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, है ना. वैसा ही इफ आई एम हैविंग क्लोरीनेशन वाला प्रोसेस तो नॉर्मली जैसे Cl2 है तो AlCl3 ले लिया एंड देन वील बी हैविंग द सेम मैकेनिज्म, है ना. कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, विल बी गेटिंग सिमिलर मैकेनिज्म ऐसे. तो Cl2 का Cl माइनस इज बीइंग कैप्चर्ड बाय AlCl3 एंड दैट्स हाउ वी आर गेटिंग Cl प्लस गेटिंग जनरेटेड. दैट इज कॉल्ड क्लोरोनियम आयन. कैटायन है इसलिए EM आता है सफिक्स. इज इट ओके? तो ये बड़ी सिंपल सी कहानी है, लेकिन इसमें अब और भी वेरिएशंस हैं तो एक एक करके कुछ कुछ नोट्स देखेंगे हम लोग. तो पहली कहानी जो मैंने बताई दैट RDS जो है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. अगर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप रहेगा तो दैट विल इंक्रीज द रिएक्टिविटी. ये इन जनरल पॉइंट है कि कभी भी पहले स्टेप को जहां हम लोगों ने RDS बोला है उसमें वी आर गोइंग टू जनरेट द कार्बोकेटायन. तो कार्बोकेटायन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक्टिवेटिंग ग्रुप, है ना. एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट की प्रेजेंस ऑफ एनी activating group is going to increase the reactivity towards EAS. Is it okay? दूसरा पॉइंट क्या बन रहा है, इफ आई एम हैविंग सम स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच्ड विद इट देन वी आर सेइंग दैट कि इसमें अगर लुईस एसिड नहीं भी रहेगा ना तो काम चल जाएगा. if I am having some strongly activating group and we had the list strongly activating का, तो if that is there तो even if they are missing that Lewis acid वाला partner AlCl3, FeCl3, FeBr3, FeAl ऐसा कुछ नहीं भी रहेगा, the strongly activating group itself, क्या मैं एग्जांपल दे रहा था यहाँ पे, मान लो अपने पास NH2 है या OH, तो OH is already having, राइटिंग है, और मान लो यहाँ Br आ गया तो Br के कांटेक्ट में आने पर इट इज हैविंग डेल्टा माइनस, इट विल इंस्पायर डेल्टा प्लस ओवर हियर एंड डेल्टा माइनस हियर, है ना. so that will induce that delta plus over and that's how it can be leaving easily without even the help of Lewis acid and that's how we can generate the electrophile. तो strongly activating group like OH, NH2 या NH minus या O minus, ये सब प्रैक्टिकली तुम्हारे इंपॉर्टेंट स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है. तो उनके प्रेजेंस में इवन इफ यू डोंट यूज द लुईस एसिड तो काम चल जाएगा. आई विल बी गिविंग यू दैट लिस्ट, अभी दे देता हूं मैं ताकि तुमको हेल्प होता रहे. हम लोगों ने पहले भी मेंशन किया था, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था. स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, वीकली एक्टिवेटिंग, देन वीकली डीएक्टिवेटिंग, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग एंड देन
स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, है ना। ये पूरी कहानी हम लोगों ने देखी थी। आई गिव यू द लिस्ट जो एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग की थी। इनफैक्ट मैंने पूरा एक टेबल भी बना के दिया था। ये तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर के। तो और मैंने उसको फिर अरेंज करके भी बताया था, स्ट्रांगली कौन है, मॉडरेटली कौन है, वीकली कौन है। उस टेबल में मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, ये मैंने लिखा था तुमको। इफ यू सी दिस वन आई विल मेक इट शॉर्टर दैट यू कैन सी इट इन वन स्क्रीन। दीज वर द ग्रुप आई वाज टॉकिंग अबाउट। यही टेबल मैंने तुमको पहले भी दिया था एंड आई टोल्ड यू। या दिस वाज द इम्पोर्टेंट टेबल आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ये अपने को पता होना चाहिए। अब इसमें देखो लेफ्ट साइड में आई हैव गिवन यू 4 टाइप ऑफ ग्रुप्स एंड राइट में 2 ही टाइप का। तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग हो या मॉडरेटली एक्टिवेटिंग हो या वीकली एक्टिवेटिंग हो, दे आर हैविंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन। तो वो सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते ही हैं। लेकिन वीकली डीएक्टिवेटिंग जो है ना, उसमें भी ध्यान से देखोगे ना, दे आर ऑल हैविंग प्लस एम इफेक्ट ऑल्सो, है ना। एफ सी एल बी आर आई एनओ जो दिख रहा है, वो सब के पास कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन डोनेट की करने की टेंडेंसी समहाउ कुछ ना कुछ है। एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि दे कैन आल्सो बी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ओनली। तो देयर आर 4 कैटेगरीज विच आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, strongly activating, moderately activating, weakly activating, and weakly deactivating. Now, the moderately deactivating and strongly deactivating is definitely meta-directing group in EAS, electrophilic aromatic substitution. Is it okay? तो मैंने तुमको 2 तरह की चीजें दे दी। एक तो ओवरऑल रफली तुमको मैंने ऑर्डर दे दिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर का। ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, मोर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, लेस विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ द सबस्ट्रेट, है ना। अब इसमें से ध्यान से देखो, एक चीज मैंने जो यहाँ दिखाया वो है ये वाला पार्ट बोल्ड करके दिया है। एफ का लिस्ट हो गया है क्योंकि एफ का सबसे ज्यादा प्लस एम इफेक्ट है, बिकॉज इट विल बी फॉर्मिंग स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विद द कार्बन, है ना। एंड दैट्स वाई इसके सबसे ज्यादा प्लस एम होने के कारण इसका डीएक्टिवेटिंग पावर जो है ना, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर जो है, दैट इज द लीस्ट अमंग द ऑल द हाइलाइट ग्रुप्स। ओके, एनी डाउट? तो ये चीज बार बार काम में आने वाला था, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हेलोजिनेशन। ये हर जगह काम आने वाला है तुमको। तो लाइक आई टोल्ड यू, प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप इज गोइंग टू इंक्रीज द रिएक्टिविटी, प्रेजेंस ऑफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप विल डिक्रीज द रिएक्टिविटी। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग आ गया, जो कि पूरा लिस्ट मैंने दे दिया, मैंने बोल भी दिया था तुमको। NH माइनस NH2 NR2 NHR O माइनस OH, these are considered to be strongly activating. If these are the groups present, even if you don't use the AlCl3 FeBr3 like all these Lewis acids ना, you will still have the reaction happening here, है ना। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। अदर कुछ और पॉइंट्स हैं। अभी जो मैंने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने की बात की ना, इसके और भी तरीके हो सकते हैं। अभी तो मैंने इन जनरल बोला X2 रहेगा एंड देन सम लुइस एसिड इज देयर, बट वी कैन ऑल्सो हैव समथिंग लाइक HOX या NOX इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। इवन इफ दैट इज देयर ना, तो भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो सकता है। तो जैसे HOX इज देयर ना, तो उसको H प्लस जो है ना, वो उसको प्रोटोनेट करके वहां से X प्लस निकाल देगा। लाइक आई टोल्ड यू ना, मान लो अपने पास XOH, अभी मैंने HNO2 के लिए ऐसा करके दिखाया था तुमको। इफ आई एम हैविंग दिस, H प्लस जाएगा, इट विल बी प्रोटोनेटिंग दिस पार्ट एंड दैट्स ऑल। यहां से जैसे ही H2O निकलेगा, विल बी गेटिंग X प्लस, है ना। तो दैट्स हाउ वी आर जनरेटिंग द इलेक्ट्रोफाइल अगेन। तो HOCl HOBr के साथ H प्लस भी दे दे, या NaOX के साथ H प्लस दे दे, तो भी विल बी सेइंग दैट कि वी हैव गॉट द X प्लस, है ना। एनी डाउट? ओके, चलो नेक्स्ट जाते हैं। 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स और दिख रहे हैं। एक जो है आयोडिनेशन में आ रहा है। आयोडिनेशन में प्रॉब्लम क्या आती है ना, दैट इफ यू सी द ओवरऑल रिएक्शन ना, जो H प्लस निकलता था वो I माइनस के साथ मिलके HI बना देगा, है ना। ये जो पूरा रिएक्शन हम लोगों ने देखा था ना, इस पूरे रिएक्शन में जैसे देखो ब्रोमिनेशन हुआ है, तो यहाँ Br माइनस जो इसका निकला और ये इसका जो H प्लस निकला, दैट इज फॉर्मिंग HBr। वैसा ही इफ आई एम हैविंग आयोडिनेशन ना, तो वहां पर देखोगे HI निकलेगा, है ना। ये अगर आया प्लस HI आने वाला है, एंड HI इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट।
तो ये क्या करेगा ना, वापस इसको रिड्यूस करके बेंजीन बना देगा। दैट मीन्स इट विल बी शिफ्टिंग द रिएक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड दैट इज व्हाई आयोडो बेंजीन बनाने के लिए दिस रिएक्शन विल हैव वेरी पुअर यील्ड। एनी डाउट? तो अब आयोडिनेशन जब करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? बेसिकली वी विल बी यूजिंग I2 तो लिया ही लिया, साथ ही साथ इसके साथ वी नीड टू यूज सम गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज पर्टिकुलरली एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इफ आई एम हैविंग आयोडो बेंजीन बनाना है तो विल बी यूजिंग I2 तो लिया, लेकिन उसके साथ HiO3, HNO3, CH3COH अलॉन्ग विद ICl। देखो अगेन ICl इज व्हाट, I प्लस एंड Cl माइनस है ना। ये जब पोलराइज होगा तो इट विल बी गिविंग यू I प्लस एंड Cl माइनस, है ना। तो दैट्स ऑल। I प्लस का एक सोर्स ले लिया, बट वी शुड हैव सम एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन प्रेजेंस ऑफ दैट होता क्या है ना, दैट इस पूरी कहानी में ये जो HI बना है ना, इट विल बी कंज्यूम्ड बाय दैट पार्ट, एंड दैट्स ऑल इट इज अवॉइडिंग द रिवर्सिबिलिटी, है ना। ये जो HI है ना, इसको ये कन्वर्ट कर देगा वापस से I2 में। यहाँ देखो ये -1 में या 0 में है ना, दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ द oxidizing agent, and that's how we are eliminating HI so that the reaction is moving in the forward direction. Is it okay? तो दिस वाज अबाउट आयोडीनेशन। फ्लोरोबेंजीन के लिए मैंने एक कहानी बताई थी, HbF4 यूज किया था हम लोगों ने बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से, है ना। तो वो कहानी ऑलरेडी मैंने तुमको बता दी कि इफ आई एम ट्राइंग टू जनरेट फ्लोरोबेंजीन, आई विल बी यूजिंग दैट रिएक्शन जिसमें हम लोगों ने पहले फ्लोरोबेंजीन बनाया, और पहले पहले हम लोगों ने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाया, एंड देन उसके बाद फिर वहां से HbF4 से ट्रीट करके फ्लोरोबेंजीन बना लिया ना। दैट वाज अनदर पार्ट। ये जो आयोडीनेशन है इसका मैकेनिज्म कैसा है, और इसमें एक चीज और ध्यान में रखना, यहाँ देखो HNO3 इज गेटिंग कंज्यूम्ड, ये +5 से +2 में जा रहा है, इट इज हैविंग N फैक्टर ऑफ 3, है ना। तो नाइट्रिक एसिड इज गेटिंग कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन, तो इट इज अ रिएजेंट रादर देन अ कैटलिस्ट, है ना। ये कैटलिस्ट नहीं है, इट इज पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, इट इज गेटिंग रिड्यूस, दैट मीन्स इट इज गेटिंग इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेयर। इसको सिंपल एसिड की तरह, एसिड कैटलिस्ट की तरह ट्रीट नहीं करना है इस रिएक्शन में। इन दिस रिएक्शन इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एनी डाउट? दूसरे टाइप का जो तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दैट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का जो इलेक्ट्रोफाइल होता है दैट इज NO2 प्लस, बट NO2 प्लस आएगा कहां से? तो द डायरेक्ट मेथड इज यू विल बी यूजिंग HNO3 along with H2SO4। इन दैट केस देखो यहाँ पर ये एक यूनिक पार्ट है जिसमें द रिएक्शन विल बी हैपनिंग इन बिटवीन HNO3 एंड H2SO4। H2SO4 is going to give you H plus, and that is going to protonate HNO3. So what we are saying in that case, H2SO4 is acting as acid and HNO3 is receiving that H plus, and that's why it is acting as base. So if I show you the mechanism ना, पहले रिएक्शन नॉर्मल का बता देता हूँ, फिर बाकी भी रिएजेंट्स हैं। जैसे आई कैन हैव NO2BF4, आई कैन हैव N2O5, है ना, NO2Cl, NO2F माइनस, है ना, ये सारे चीजें यूज की जा सकती हैं। बट इफ यू सी द मैकेनिज्म ऑफ द जनरल रिएक्शन जो HNO3 H2SO4 वाला है, उसमें सबसे पहले जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होने वाला है दैट विल बी हैपनिंग बाय ट्रांसफर ऑफ H प्लस फ्रॉम H2SO4 टू HNO3। तो देखो ये this is acting as acid and this is accepting the H plus, and that's why it is acting as base. That's the unique part in it, that during nitration when the reaction is happening between H2SO4 and HNO3, H2SO4 is acting as acid but HNO3 is acting as base. Any doubt? अब वही देखो, उसको प्रोटोनेट करके फिर वाटर निकल के वी हैव गॉट NO2 प्लस एज द इलेक्ट्रोफाइल। तो दिस इज द रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, RAE जिसको बोला। और इसके आगे की कहानी तो वही सिंपल वाली है जो हम लोगों ने देखा है अभी तक, दैट नाइट्रो NO2 प्लस विल बी अटैकिंग ओवर द बेंजीन रिंग, उसकी एरोमेटिसिटी जाएगी और फिर H प्लस बाहर निकलेगा तो फिर एरोमेटिसिटी बाहर आ जाएगी। दैट वाज द लास्ट स्टेप, है ना, जो हम लोगों ने जनरल देखा हुआ है। एनी डाउट? अब इसमें जो मैंने पॉइंट बताया था दैट आई मेंशन हियर, H2SO4 being a stronger acid than HNO3 is going to give H plus to HNO3 to produce NO2 plus,
फ्यूमिंग HNO3, ये मैंने वॉल्यूमेट्रिक में तुमको बताया था ना। एच HNO3 के अंदर N2O5 वॉज कंप्रेस्ड, है ना। N2O5 कंप्रेस्ड इन HNO3, है ना। अब उसमें जैसे ही वाटर आएगा, इट विल प्रोड्यूसिंग ऑल द N2O5 विल आल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू HNO3, और HNO3 तो फिर वापस तुमको NO2 प्लस दे ही देता है ना। दैट्स हाउ वी कैन हैव दिस रिएक्शन। H2SO4 नहीं है, H प्लस दिया, बट बाद में H प्लस निकल भी जाता है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि H2SO4 is not net consumed, and that's why this, in this case, it is acting as acid catalyst and dehydrating agent. One more point. यहाँ देखो क्या होता है ना, इफ आई शो ऑल द बोथ द स्टेप्स, दिस इज स्टेप 1 जिसमें हम लोगों ने रिवर्सिबिलिटी दिखाई है, सेकेंड स्टेप में भी रिवर्सिबिलिटी दिखाई है। तो बोला है कि एवरी इंडिविजुअल स्टेप इज रिवर्सिबल, बट द ओवरऑल रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल। या ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर मैं कंपेयर करने को बोलूँ ना, कि K1 K2 को कंपेयर करो और K3 K4 को कंपेयर करो, एंड देन द इंपॉर्टेंट कंपेरिजन इज इन बिटवीन K2 एंड K3। देखो एक कंपैरिजन ऐसा आएगा, K2 K1 की बात अगर हम लोग करेंगे ना, तो देखो रिएक्शन प्रोफाइल जो हम लोगों ने नॉर्मली देखा हुआ था, आई शो यू दैट अगेन। देखो जो हम लोगों ने जनरल रिएक्शन प्रोफाइल देखा था, ऑब्वियसली फॉरवर्ड का EA1 जो बैकवर्ड के EA से है वो काफी ज्यादा है ना। ये देखो ये बैकवर्ड का EA हो गया है ना, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि इन दिस केस फॉरवर्ड का EA ज्यादा है, बैकवर्ड का EA कम है, फॉर द स्टेप 1 की बात मैं कर रहा हूँ। एंड दैट्स व्हाई फॉरवर्ड का रेट कम होगा, बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा, है ना। एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि K2 इज ग्रेटर देन K1। या चलो मैं डायग्राम फिर से यहाँ दिखा देता हूँ, सो दैट यू कैन हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्राफ, आई जस्ट मेक इट अगेन। So now if you see this graph along with the comparison, like I told you, यहाँ पे अगर मैं EA1, यहाँ दो दो, या मतलब इसको मैं बैकवर्ड के साथ कर रहा हूँ, यहाँ मैंने EA1 EA2 दोनों दिखा दिया 1 2 3 4 में। तो इफ आई कॉल इट EA1, एंड अभी मैं बैकवर्ड को मैं EA2 बोल देता हूँ, इसी के बैकवर्ड को आई एम कॉलिंग दिस वन एज EA2, एंड आई एम कॉलिंग दिस वन एज EA3, एंड बैकवर्ड का देखो इसका EA, दैट इज डेफिनेटली EA4 जो है, वो ध्यान से देखो, दिस इज EA4, है ना। Now, if you see these things, so we can definitely say EA1 is greater than, in fact, much greater than EA2, and that's why we'll say that जिसका activation energy ज्यादा होती है उसका rate कम होता है ना, we have seen that. So that's why we'll be saying कि K1 will be less than K2, in fact much less than, we can say that. वैसा ही 3 and 4 अगर मैं compare करूं, तो this time EA3 is much less than EA4, and that's why this time we'll say that कि K3 is much greater than K4. तो ये तो एक कहानी हो गई, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट EA2 एंड EA3, और इसी की बात मैं कह रहा था कि नॉर्मल रिएक्शंस में अदर देन सल्फोनेशन, यू विल फाइंड दैट जो इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है वो ये है कि EA2 जो है ना, दैट इज ग्रेटर देन EA3 फॉर ऑल द ES अदर देन सल्फोनेशन। एंड ऐसा होने के कारण क्या हो रहा है ना, EA3 से ज्यादा है, एंड ऐसा होने के कारण वी आर सेइंग दैट कि K2 इज लेस देन K3। What is the meaning of that? K2 is being less than K3, इसका मतलब है K3 which is moving the reaction in the forward direction is more than the K2 which is moving the reaction in the backward direction, है ना, from this intermediate का stage, है ना। इंटरमीडिएट से जब इधर चले तो K3 काम करेगा, इधर चले तो K2 काम करेगा, बट अल्टीमेटली वी नो दैट कि K3 is more than K2, and that's why we are saying that कि overall reaction will keep moving in the forward direction. So individual step was reversible, yes, but from intermediate if you see,
forward direction का rate is greater than that of backward direction, and that's why the overall reaction will remain irreversible. That means it will be moving in forward direction. Any doubt? This is an important point. इनफैक्ट जब जे में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पे पहुंचेगा, इस तरह के कंसेप्चुअल लेवल पे जाएगा, तो they'll be asking about these type of points. Any doubt in this case? This is one of the most important point in electrophilic aromatic substitution का conceptual. बाकी reactions तो तुम रट्टा मार लेते हो तो you can answer always, but conceptual points are important जहां पे तुम लीड लेते हो, ठीक है? So this was one point. Any doubt? बट लाइक आई टोल्ड यू, जो काम नाइट्रेशन में हो रहा है उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है सल्फोनेशन में. सल्फोनेशन में यही कहानी जो है ना, उसमें मैंने बताया था कि एनर्जी डायग्राम में ये जो यहाँ पर नीचे रह गया ना E(A)3, दैट विल बिकम कंपेरेबल टू E(A)2, एंड दैट्स व्हाई द ओवरऑल रिएक्शन विल आल्सो बी रिवर्सिबल. इंडिविजुअल स्टेप्स आर रिवर्सिबल, बट इवन द ओवरऑल रिएक्शन विल बिकम रिवर्सिबल, एंड दैट्स व्हाई यहाँ देखो रिवर्सिबिलिटी का साइन है. दैट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन जैसे हो रहा है वैसे ही बैकवर्ड रिएक्शन भी पॉसिबल है. एनी डाउट इन दिस केस? इसमें मैंने बोला था कि वो ऊपर टच करता है, इट इज ऑलमोस्ट, इसी में जो ऊपर मैंने लिखा था वहां पर E(A)2 और E(A)3 कंपेरेबल हो जाते हैं. दैट्स व्हाई द ओवरऑल रिएक्शन इज ऑल्सो फाउंड टू बी रिवर्सिबल. ओके, अब यहाँ पर वही कहानी है, H2SO4 डायरेक्टली लेना है या फिर वी कैन टेक द ओलियम वाला केस जो हम लोगों ने फ्यूमिंग H2SO4 बोला, तो दैट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ SO3. SO3 इज द एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल. अब वो इलेक्ट्रोफाइल कहां से आएगा? अगेन सिमिलर मैकेनिज्म, H2SO4 का वन मॉलिक्यूल इज गोइंग टू गिव यू H plus, and that will be captured by another molecule of H2SO4, and that's how we'll be getting SO3. So this is the real attacking electrophile. Any doubt up to this point? अब ये तुम्हारा नॉर्मल वाला केस नहीं है. व्हाई इट इज नॉट नॉर्मल? बिकॉज अभी तक जितने इलेक्ट्रोफाइल मिल रहे थे ना वो प्लस चार्ज के साथ आते थे ना. वी हैड Cl प्लस, वी हैड Br प्लस, वी हैड NO2 प्लस. बट ये जो थर्ड केस आ रहा है, दैट इज हैविंग SO3 which is a neutral molecule. But why it will be acting as electrophile? Anyone? Why it is acting as electrophile? How can it act as electrophile? Any idea? इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल, है ना, नॉट द प्लस चार्ज डेफिनेटली. तो वैकेंट ऑर्बिटल कहां पे? तो सल्फर इज फोर्थ थर्ड पीरियड मेंबर विच इज ऑल्सो हैविंग वैकेंट 3D ऑर्बिटल, है ना. तो दिस SO3 और SO3 acts as electrophile due to presence of vacant D orbital on sulfur, है ना. That's why it can act as electrophile. अब इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा? आगे क्या स्टेप? when it will be interacting with the benzene ring, then मान लो ये ले लिया, and then we have got SO3. यहाँ पे this is going to attack over this, ये ओपन हो जाता है इसके साथ. That's how this thing will get attached to किसी एक जगह पे, उसको अटैच कर दो. तो जैसे मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया इसको SO3 माइनस, देन यहाँ पे विल बी गेटिंग प्लस, है ना. ओके, एंड देन यहां से फिर हाइड्रोजन विल बी लिविंग. That's all. You will be getting SO3 minus attached with that. So we are getting this with SO3 minus, ऐसा लिख दो या फिर पूरा मैं दिखाई देता हूँ के लिए. This we have got, and then we have got H plus, H2SO4 तो है ही वहां पे. So that's how we'll be getting this
SO3H अटैच होता है यहाँ पे। इसी को वी कैन राइट PHSO3H है, और वी कैन राइट इट एज दिस वन SO3H. That's the product during sulfonation. ओके, चलो अब इसके लिए जो मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट बोला था, दैट जो डायग्राम हम लोगों ने देखा था उससे थोड़ी सी कहानी अलग हो जाती है। और वो अलग कहानी क्या है कि सल्फोनेशन में ना, जब हम लोग सल्फोनेशन में जाएंगे तो इट विल बिकम कंपेरेबल। द एनर्जी डायग्राम विच वी हैड अर्लियर ना, उससे थोड़ी सी कहानी अलग हो जाती है। इफ आई हैव गॉट दिस पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम, जो पहले मिल रहा था हम लोगों ने ऐसा देखा था, दिस वाज गोइंग लाइक दिस, और उसके बाद ये जो नीचे से जा रहा था, नाउ इट विल बिकम कंपेरेबल। तो ये कुछ ऐसा जाएगा, दैट्स हाउ विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट। सो ये जो पूरी कहानी है ना, इसमें हम लोग बोल रहे हैं ये जो लेवल है दैट हैज बिकम कंपेरेबल, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि इन दिस केस इफ आई से दिस वन एज, पूरा मैं स्टेप बता ही देता हूँ, इसको रिवर्सिबिलिटी दिखा देता हूँ मैं। तो if I'm calling it K1, if I'm calling it K2, if I'm calling it K3, and if I'm calling it K4, the important part is that K3 and K4 have become comparable as EA2, sorry, K3 and K2 have become comparable because EA3 is now very close to EA2. And that's why एक point यहां से जो पता चला ना, that is the individual steps are reversible, as well the overall reaction will also become, the overall reaction also becomes reversible along with the individual steps. इसको आगे यूटिलाइज करेंगे, बट इसमें एक पॉइंट और आता है। ये तो ब्लैक वाला जो मैंने ड्रॉ किया ना, दैट वाज द केस व्हेन आई हैव गॉट बेंजीन रिंग के साथ इफ आई हैव गॉट H अटैच्ड, तो ये केस बनता है। अगर इसी में डी आ गया ना, तो फिर ये कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ जाती है। तो ये कुछ ऐसा चला जाएगा। ये ब्लू वाला तो H के लिए है, ये जो है दिस इज फॉर इसके लिए है। ये जो ग्रीन वाला है ना, दैट इज व्हेन आई एम टेकिंग सबस्ट्रेट जिसमें H की जगह D है। अब अगर ऐसा हो गया तो देन इनफैक्ट इन दिस केस आगे वाला जो रिएक्शन है उसका रेट गिर जाएगा ना। दैट्स वाई जो हम लोगों ने बोला था, जनरल ईएएस में वी डोंट ऑब्जर्व प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, इन सल्फोनेशन वी ऑब्जर्व अ सिग्निफिकेंट प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। इज इट ओके? ये मैंने डायग्राम पहले से बना के रखा है, आई शो यू दैट अगेन, बट यही जो मैंने बताया वही पॉइंट है, लेकिन सिमिलर पॉइंट है कि ए आर डी के लिए वी आर हैविंग थोड़ा सा ऊपर चला गया, एंड दैट्स वाई इस केस में क्या हो जाएगा, यू विल बी ऑब्जर्विंग अ प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। तो दो पॉइंट बनते हैं यहाँ से। पहला पॉइंट ये बन रहा है कि ए आर एच के केस में, जो नॉर्मल ब्लैक वाला ग्राफ दिख रहा है तुमको, उसके केस में द ओवरऑल स्टेप बिकम्स ऑल्सो रिवर्सिबल। ये तो अभी मैं हटा देता हूँ, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। I'll give you the first point जो मैंने बोला था, that this reaction has reversibility. That was one point. The second point is, in presence of D, you'll be finding that it is having important significant difference in the rate of reaction, and that is coming because we have got, इसका जो डायग्राम है, that has got ARD के केस में this step with a higher activation energy है ना, and that will be decreasing the overall rate of reaction also. So that's why we are saying कि अगर H की जगह D से रिप्लेस कर दिया ना, H की जगह अगर D आ गया तो then rate will become less. But that is valid only in सल्फोनेशन। बाकी जनरल ES या फिर बाकी सारे ES के केस में will be saying that कि we don't observe significant primary kinetic isotopic effect. Any doubt?
अब ये जो रिवर्सिबल होने वाला पॉइंट मैंने बोला, तो सल्फोनेशन हो सकता है, तो उसी के रिवर्स को वी कैन कॉल इट डीसल्फोनेशन। एंड दैट्स व्हाई अगर मैंने सल्फोनेशन यूज किया ना, तो वी कैन ऑल्सो हैव डीसल्फोनेशन, और डीसल्फोनेशन बिकम्स अ टूल इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कई बार क्या होगा ना, तुमको एक पोजीशन पे साइट ब्लॉक करना होता है, तो वो ब्लॉक किया जाता है इसी SO3H के थ्रू। तो दैट जैसे अभी मैंने क्या बोला कि इफ आई एम हैविंग सल्फोनेशन, तो सल्फोनिक एसिड कैन गिव यू बेंजीन ऑल्सो, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। तो एसिडिक मीडियम में यूज कर दिया, 100 डिग्री C पे लेके गए, तो इट इज गिविंग बैक द बेंजीन। तो इसको हम लोग कहीं कहीं देखोगे आगे जाके फ्यूचर में, विल बी टॉकिंग अबाउट कि मान लो अपने पास, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल कि कहाँ इसको यूज करने वाले हैं। तो मान लो जैसे अपने पास कोई भी एक ग्रुप ले लिया मैंने, आई एम हैविंग C2H5 यहाँ पे, एंड वी नो दैट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, है ना। बट नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर इस पे मैंने रिएक्शन करवाया, कोई भी एक करवा लेता हूँ, जैसे Cl2Al Cl3 दे दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, मिलेगा तो ऑर्थो पैरा दोनों पे, विल बी गेटिंग C2H5 यहाँ लिखा है मैंने, तो यहाँ पर भी एक प्रोडक्ट मिलेगा, एंड दूसरा प्रोडक्ट पैरा पे भी मिलेगा। बट जनरली यू विल फाइंड दैट कि पैरा वाला वाज विल बी मेजर प्रोडक्ट, बिकॉज वहां पे रिपल्सन कम मिल रहा है, स्टेरिक क्राउडिंग कम मिल रही है, एंड दैट्स व्हाई दैट इज जनरली द मेजर प्रोडक्ट। एक्सेप्शनल केस कौन से हैं मैं बताऊंगा, बट जनरली दैट विल बिकम अ मेजर प्रोडक्ट। बट इफ यू वांट ऑर्थो टू बी द मेजर, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग एक दूसरा ट्रिक करते हैं। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इट विल बी ब्रॉट टू अ डिफरेंट पाथ। पहले हम लोग विल बी टेकिंग कॉन्ग H2SO4, ठीक है। इससे हम लोगों ने क्या किया, सल्फोनेशन करवा दिया। वी नो दैट कि सल्फोनेशन जब होगा ना, तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, है ना। दिस विल बी द मेजर, क्योंकि पैरा पे ही मेजर बनता है, तो ये भी मेजर होगा। अब ऐसा करने के बाद नाउ इफ आई एम गिविंग यू ना, अभी मैं यहाँ पर Cl2 एंड AlCl3 दे दिया मैंने अगर, तो अब देखो इसका ऑर्थो आर दीज टू पोजिशंस विच आर ऑल्सो मेटा ऑफ दिस। तो ये दोनों ग्रुप बता रहे हैं कि यहीं पे और इसके ऑर्थो पे लेके आओ, एंड दैट्स हाउ विल बी गेटिंग C2H5। यहाँ पे अभी क्लोरो आ गया, एंड यहाँ पे SO3H आ गया, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। और फिर उसके बाद इसको डीसल्फोनेट करा दो, है ना। तो डीसल्फोनेशन का मतलब है डाइल्यूट एसिड दे दो, या 100 डिग्री C पे लिख दो उसको, है ना, डाइल्यूट H2SO4। इतना भी लिखा तो चलेगा, बट अगर पूरा देना चाहेंगे तो दिल बी राइटिंग डाइल्यूट H2SO4 100 डिग्री C। ये डीसल्फोनेशन हो गया। अब ये जो ट्रिक है ना, इसके थ्रू वी आर मेकिंग ऑर्थो प्रोडक्ट एज द मेजर। इज इट ओके? एनी डाउट? चलो, जो डीसल्फोनेशन का जो पॉइंट है, आई विल बी गिविंग यू ऑल द पॉइंट्स। तो मैकेनिज्म मैं पहले दे देता हूँ डीसल्फोनेशन का, ये तो मैंने यूटिलाइजेशन बताया, आई विल एक्सप्लेन दैट अगेन। तो इसका पॉइंट पहले मैं लिख देता हूँ तुमको, आई विल गिव यू दिस पॉइंट की डीसल्फोनेशन को वी आर गोइंग टू यूटिलाइज एट एज अ टूल whenever I'll be needing ortho product as a major product, and if I'm not getting that, then I'll be using this trick, है ना। एक दूसरी कहानी जो मैंने मैकेनिज्म की बात की, कि मैकेनिज्म में ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि अगर कॉन्क है तो फिर ये फॉरवर्ड में जाएगा, डाइल्यूट लिया तो फिर बैकवर्ड में जाएगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म, एंड दैट मैकेनिज्म इज ऑल्सो शोइंग द प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। एनी डाउट इन दिस केस? चलो, अभी मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर, आई थिंक हाफ लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर दैट फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन, एंड लाइक आई टोल्ड यू, जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड ऑलरेडी है उसमें इफ आई एम ट्राइंग टू गेट द मेजर प्रोडक्ट ना, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, हाफ लेक्चर विल बी टेकिंग दैट, एंड देन we'll be moving to the next chapter, which will be different from the typical NCERT का chapter. NCERT का chapter is 12th class का। now 11th class का organic chemistry is over। जब ये मैं खत्म कर दूंगा तो देन उसके बाद जो वहां आता है ना, वहां दे राइट हेलो अल्केन, हेलो हेलो अरीन, बट मैंने थोड़ा अलग फ्रेम किया हुआ है। आई विल बी टीचिंग यू हेलो अल्केन, अल्कोहल एंड इथर। फिर उसके बाद हम लोग अल्डिहाइड कीटोन कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग
बचे हुए एसिड डेरिवेटिव अमीन कर लेंगे, एंड देन आई विल बी गिविंग यू दैट चैप्टर जिसमें मैं सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, सारे एरोमेटिक कंपाउंड एक साथ कवर करने वाला हूँ। फिनॉल, एनिलीन, हेलोअरीन, ये सब एक साथ कवर कर दूंगा। आई कॉल दैट चैप्टर एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, चलो आज यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट डे विल कंटिन्यू विद दिस फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन रिएक्शन, एंड उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि किसी भी रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, इफ इट इज सब्स्टिट्यूटेड और नॉट सब्स्टिट्यूटेड। इट कैन बी मोनो सब्स्टिट्यूटेड, इट कैन बी डाई सब्स्टिट्यूटेड ऑल्सो। इन ऑल दोज केसेस विल बी टॉकिंग अबाउट कि क्या प्रोडक्ट मेजर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट डे विल कंटिन्यू विद दैट। चलो क्लोज करते हैं ना। ओके, बाय एवरीवन।